नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज जनेवार के भी, और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नाम्बियर जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं, हम दोनों नेशन नाउ पर हैं, और नेशन नाउ कहाँ पर है? हमेशा हमेशा आपके साथ, और हमेशा ही आपके साथ रहेगा। आप सबको नेशन नाउ की तरफ से जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय, जय हिंद, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद, और बाकी सब भी सत श्री अकाल, etc etc, and assalamu alaikum to everybody, sat sri akal, good evening, and ni hao to our viewers in China, and konnichiwa to our viewers in Japan. Amaria Kojambo to our viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. Wherever they speak Swahili. Isn't that wonderful? Isn't that absolutely wonderful? So Pradeep ji, good news and bad news. Anyway, I think it's all good news. Very frankly, there is no bad news. Trump met Putin, nothing happened. They all said they would meet again, and then there would be another meeting, which would also include Vladimir Zelensky. He's not Vladimir, he's Vladimir. This is Vladimir Putin, that is Vladimir Zelensky in the Ukraine. And they would all meet again. They met at the Anchorage in Alaska. A lot of talk about, is it the original Putin? Because they say Putin has got so many duplicates that this duplicate or who was so humorous, so much of smiling Putin. This is unlike the real Putin who hardly smiles. That's right. So this Putin was always smiling, always wishing, always talking to journalists. I mean, this is not the Putin that people know. So there's always there's speculation that is this the original Putin? Because right from the inception, when he met Trump and they were walking, this Putin was always smiling, always smiling. Maybe this Putin was smiling because they all know that he's made a monkey out of Trump. Maybe that's the reason why. and at the end he says we'll meet in Moscow again. He's the next meeting in Moscow. That's what he said. So nothing happened. Only thing that has happened is that now Trump says that I am not going to impose any further penalties on India as being one of Russia's clients, especially with regard to, well, not especially, only with regard to oil purchases. Of course, he doesn't dare to do anything to the Chinese. जहाँ तक चाइना के खिलाफ है, चाइना के खिलाफ ट्रम्प साहब ने कितने 135% टैरिफ लगा दिए, और फिर कहा कि 180 दिन तक there will be a moratorium. मतलब he doesn't have the guts to do that to China, but he's doing it to India. And as far as the Indians are concerned, guess what has happened? आप जानना चाहेंगे क्या हुआ है? We have ordered more oil from Russia. More oil tankers from Russia are now going to be docking at Indian ports. ज्यादा ऑर्डर कर दिया है तेल हमने रशिया से, और कहा है पुतिन ट्रम्प साहब थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। और 30 तारीख को तो खैर जा ही रहे हैं अपने प्रधानमंत्री जी शंघाई, एट द शंघाई कोऑपरेशन काउंसिल, वहाँ पर मीटिंग होगी। इट इज़ ऑलरेडी बीन फिक्स्ड विद Xi Jinping, and that's nice. And then of course there is a summit planned sometime in September between Vladimir Putin, Narendra Modi and Xi Jinping. You know, people actually, most of Indians, they want to have something to do with India, Indo-China and Russia. Frankly speaking, लोगों के दिल में बसा हुआ है कि Indo-China और एक अच्छा, because Russia और India का बहुत पुराना एक रिश्तेदारी है. Yeah, so people would love this kind of an access and alliance. But the Chinese distrust Prime Minister Modi. Chinese distrust बोले एक बार ट्रम्प ने बोला ये सब छोड़ के उधर भाग जाएंगे. They distrust, they probably want to have an alliance, but they distrust Prime Minister Modi that he will stick to a Indo-China-Russia alliance. And the first call of Trump, President Trump, and Modi will just, a fence sitting, Modi will just jump over the other side and be Trump's partner. I hope it doesn't happen. That's the only thing that one can hope for. देखिए साहब, ये हिंदुस्तान है। हम लोगों ने बहुत मुश्किलों का सामना किया है, और दूसरी बात क्या है कि भारत जो है वो 5000 साल से ज्यादा पुरानी सभ्यता है, चीन भी 5000 साल से ज्यादा पुरानी सभ्यता है, और रूस भी जो है इट इज गॉट अ हिस्ट्री ऑफ एटलीस्ट 1000 years। क्या है कि ये एक सिविलाइजेशनल एक्सेस होगा अगर आप चाइना रशिया और इंडिया, या रशिया इंडिया चाइना एक हो जाए, तो दिस विल बी अ सिविलाइजेशनल एक्सेस दैट विल काउंटर बैलेंस द इफेक्ट ऑफ द वेस्ट। आज की तारीख में जहां तक अमेरिकन का सवाल है, द अमेरिकन आर एक्टिंग एज दो दे आर रूलर्स ऑफ द वर्ल्ड, कि पूरी दुनिया के शहंशाह वही हैं। अरे भैया, दुनिया बदल चुकी है, और जहां तक आप लोगों का सवाल है, आपकी ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमी तो हिंदुस्तानी चला रहे हैं।
In any event, that doesn't make a difference. I hope Mr. Modi stays firm. क्योंकि अगर आज ट्रंप साहब हमारे ऊपर पहले 25% फिर 25% और टैरिफ लगा सकते हैं, तो आगे कुछ भी हो सकता है. You never know, because trust has gone. There is no trust left anymore in the US-India Not only relationship. trust has gone, he further, जिस प्रकार से कहते हैं इंडिया को परेशान करने के लिए जिस प्रकार से आसिफ मुनीर को वहां पर बिठा के रख दिया, वहां पर बिठा के, और पहली बार यूएस के सरजमीन से चेतावनी देना हमारे देश को और पूरे विश्व को कि हम अगर डूब गए तो आधा विश्व को लेकर डूब जाएंगे जी। और फिर नोबेल प्राइज की प्रतीक्षा करना कि नोबेल प्राइज शायद मुझे मिले। आपके सरजमीन पर अगर न्यूक्लियर वॉर के ऐलान हो रहा है तो आर यू फिट फॉर अ नोबेल प्राइज? That's right. दैट इज अ न्यू क्वेश्चन दैट इज गोइंग ऑन। नया चर्चा चालू है, आपको नोबेल प्राइज चाहिए और आपके सरजमीन से न्यूक्लियर वॉर का घोषणा हो रहा है। दैट वाज थर्ड कंट्री लाइक पाकिस्तान विद द वर्ल्ड नोज ऑलरेडी एक ग्रे लिस्ट में था फाटा का, ऑलरेडी नोन आपके पुराने जितने प्रेसिडेंट ने कहा कि ये वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि प्लेस वेयर स्नेक्स ब्रीड, और ऐसे देश के नॉट इन प्रधानमंत्री फील्ड मार्शल कमिंग एंड थ्रेटनिंग, तो हाउ कैन यू use your soil for this kind of trade acts of war? So let's ask our guests. Let's go straight across to our And guests. then expect a Nobel Prize. That's right. Let's go straight across to our guests. We've got a wonderful, wonderful panel today. Dr. Aviral Malik साहब, नमस्कार. आपकी आवाज नहीं आ रही सर. अविरल मलिक साहब, नमस्कार सर. नमस्कार जी नमस्कार। नमस्कार बहुत सर. धन्यवाद। जय सिया राम, जय सिया राम, जय हिंद. जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय हिंद सर, जय हिंद. प्रोफेसर राकेश प्रजापति साहब, always a pleasure to hear you and to meet you. प्रजापति साहब, नमस्कार. Dr. Prajapati, नमस्कार। नमस्कार। Wonderful, wonderful to see you sir. Really and truly wonderful to see you. और निजामुद्दीन रहीम साहब, हमारे बड़े पुराने मित्र, हमारे बड़े पुराने कलीग भी रह चुके हैं. निजाम साहब, फेलो जर्नलिस्ट, Yes. आज कांग्रेस में हैं, काफी सालों से कांग्रेस में हैं, लेकिन निजाम साहब नमस्कार. नमस्कार सर। जय हिंद. जय हिंद। निजाम साहब, पहले आपसे शुरू करता हूं. निजामुद्दीन रहीम साहब, कांग्रेस के. निजाम साहब, कल हमारा आजादी दिवस था, स्वतंत्रता दिवस था. प्रधानमंत्री जी 103 मिनट तक बोले, 103 मिनट्स. उसी दौरान जोर से बारिश हो रही थी दिल्ली में. 24 अकबर रोड पर राहुल गांधी जी ने भी झंडारोहण किया कांग्रेस के हेडक्वार्टर्स में. बारिश हो रही थी, सब कुछ हो रही थी. राहुल गांधी जी ने छाता तक नहीं लिया, भीगते हुए झंडारोहण किया, सब कुछ किया. अब आपने मोदी जी का भाषण सुना. आप क्या कहेंगे मोदी जी के भाषण को लेकर के, कि क्या वो इंस्पायरिंग था, उत्साहजनक था, लोगों को प्रोत्साहित करने वाला था, भारत के लोगों में, भारतीयों में कॉन्फिडेंस करने वाला भाषण था सर? निजाम साहब, क्या ऐसा है कि क्या पिछले कांग्रेस 11 भी साल उसकी से- सराहना करेगी? बोलिए. पिछले 11 साल से माननीय प्रधानमंत्री का भाषण सुन रहा हूँ। मैंने पहले ही कहा है कि मैं माननीय प्रधानमंत्री का तो बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन बीजेपी की मुखिया के नाते माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी से किसी बात से सहमत नहीं, क्योंकि पिछले 11 वर्षों में उन्होंने जो आज तक वहाँ से कहा है, पहली बात तो 99% वहाँ से वो झूठी बोलते हैं, कभी वो सच बोलते नहीं, और हर बार उनका जो बात है वो बाहर आके सब ओपन होता है कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। अभी भी आपने देखा कि जिस तरह की बातें वो करते हैं, मैं कर दूंगा, मैं दे दूंगा, मैं बना दूंगा। अरे भाई, 11 वर्ष इसके लिए आपको थोड़ी दिया देश ने। पहले 5 साल में हो सकता है आपको लगा हो कि देश कैसे चलना है, मुझे नहीं समझता। दूसरे 5 साल में भी आपने वही कर लिया, और तीसरे 5 साल का पहला साल भी आप खा गए। तो आपने तो अभी तक जमा पूंजी सिर्फ यही किया है कि मैं भारत को विश्व गुरु बनाऊंगा, मैं भारत में ये उत्पाद करने वाला हूं, मैं भारत में ये बनाने वाला हूं, मैं देश में ये करने वाला हूं। अरे करेंगे कब, वो पूछना है। अभी तो आप, अभी तक नेहरू जी आपके पीछे लगे हुए हैं। नेहरू जी से बाहर निकलिए। 11 वर्ष आपने सत्ता का उपयोग किया है, उन 11 वर्षों में आपने क्या किया है वो बताइए। कल भी आपको सुनने में किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं था, देश आपको कोई सीरियस ही नहीं लेता। आप चिल्ला रहे थे, एक 103 मिनट या समथिंग कुछ ना, 1 घंटा कुछ आपका भाषण है। 5 मिनट राहुल गांधी बारिश में थे और झंडा वंदन में पूरे देश ने उनके लिए उनको फ्लैश किया है, और पूरे देश ने उनको दिखाया। आज आप इंस्टाग्राम पे जाओ, सोशल मीडिया पर जाओ, जितना भी आप जगहों पर देखेंगे, वो 5 मिनट की क्लिप राहुल गांधी ने देश के सामने रखकर
ये साबित कर दिया कि लीडर कौन हो और काम करने वाला कौन है। और ये जी बोलिए इसलिए भी बोलिए कह रहा हूं, जी। इसलिए कह रहा हूं कि सर भारत का हर आदमी आज खुद अवेयर है, उसको पानी में डाल के कुछ पिलाना नहीं है सर। आज वो हर चीज समझता है कि मेरे देश में क्या पॉलिसीज बन रही हैं, इन पॉलिसीज का तुरंत क्या रिएक्शन आएगा। आप सोचिए कि किसी भी नेता के लिए इस देश में 11 साल बहुत होते हैं। 11 साल में आज भी देश के माननीय प्रधानमंत्री, इनका मंत्रिमंडल, माननीय प्रधानमंत्री के जितने सहयोगी, चाहे नड्डा गड्डा जितने लोग हैं, ये सारे के सारे अभी तक नेहरू जी में उलझे हैं कि कांग्रेस ने ऐसा किया था, वो इमरजेंसी लाई थी और फलां किया था। कल मैं राहुल ये सब गांधी क्यों करूं? तो राहुल जी कल इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशंस में नहीं थे, तो बीजेपी का आलोचना शुरू हो गया कि इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन में राहुल गांधी जी क्यों नहीं थे। और मोदी जी जिस प्रकार से आरएसएस का प्रेस करना, तारीफ करना, आरएसएस बैकबोन है देश का डेवलपमेंट में। इतिहास, नेशन बिल्डिंग, जो नेशन बिल्डिंग है उसके आरएसएस का कंट्रीब्यूशन कोई नकार नहीं सकते। और लार्जेस्ट एनजीओ अगर पूरे दुनिया का है वो आरएसएस है, और मैं आरएसएस को सैल्यूट करता हूं। ये मोदी जी पहली बार कल मोदी जी की इसी एक सेंटेंस ने इस देश में ये साबित कर दिया कि बीजेपी निकम्मों की सरकार है। कल उन्होंने वो डर दिखा दिया जो उनको भागवत पिछले 1 महीने से उनको डंडा कर रहे थे कि आपको कुर्सी छोड़ना है, इसलिए कल उनकी मजबूरी थी। अगर वो आरएसएस से इतने प्रभावित थे और आरएसएस अगर इस देश के लिए इतना कुछ किया और देश के में बड़ा आरएसएस का रोल था, तो मोदी जी 11 साल तक आरएसएस को क्यों ढो रहे थे? क्यों नहीं आरएसएस पर बोला? हिंदू महासभा के कल का स्टेटमेंट आपने देखा, झंडे को उल्टा कर दिया है, नीचे ऊपर जो है उन्होंने भगवा लगाया है। उसके अलावा कल आरएसएस के जिन नेताओं का आपने बयान सुना होगा, वो शर्म से डूब मरने वाली बात है। इसका मतलब है कि मोदी जी हार गए। मोदी जी उन्होंने कल जो है घुटने टेक दिया उन्होंने भागवत के सामने कि भागवत जी मुझे बना रहने दीजिए। इसलिए कल उन्होंने अपने 11 साल के कार्यकाल के बाद पहली बार लाल किले से उन्होंने आरएसएस के बारे में बात की। आप मुझे बताइए कि इस देश में आरएसएस का क्या रोल है? गांधी को मारने में उनका रोल है, और आप गांधी की समाधि पे फूल लेके चारों तरफ टहल रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। आप दोगला काम क्यों करते हैं? आप जिन्ना और आरएसएस के लोगों की पूरी सावरकर की पुरानी हिस्ट्री देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगी। आप भारत की टू नेशन थ्योरी को पढ़ लीजिए, लोगों के सामने ले आइए, दिखाइए कि ये दोनों ने क्या किया उसके पहले। तो इसलिए प्रधानमंत्री मोदी चूंकि अब जा रहे हैं इस देश से, कभी भी उनकी विदाई संभव है, ये आप समझ लीजिए। आप रिस्पॉन्सिबल हो विभाजन के लिए, आप रिस्पॉन्सिबल हो। बीजेपी का कहना है टेक्स्ट बुक्स में छापा है, टेक्स्ट बुक्स एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में छापा है कि आप विभाजन के लिए जिम्मेदार हो। जिन्ना जिम्मेदार है, कांग्रेस जिम्मेदार है, और तीसरा है इंडियन जिस प्रकार से नामबिहार जी कोई साबित नहीं कर सकता इस देश में कि कांग्रेस विभाजन के लिए जिम्मेदार है। मुस्लिम लीग के साथ मिलकर आरएसएस ने सरकार बनाई। आरएसएस ने नहीं बनाई सर, हिंदुओं की बात करने वाले नहीं सर, हिंदू महासभा ने बनाई। अरे हिंदू महासभा ने बनाई सर। जिन्ना तीन लोग जवाबदार है अपने टेक्स्ट बुक, नए टेक्स्ट बुक के हिसाब से जिन्ना जवाबदार है, नेहरू जवाबदार है, और माउंटबेटन जवाबदार है। तीनों जवाबदार है। हमारे एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक है। डॉक्टर प्रजापति इसको सब्सक्राइब करेंगे। कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता। उसी तरह से ये जो तीनों चारों पांचों संगठन इनके साथ चलते हैं, वो सारे के सारे संगठन इन्हीं के हैं। और ये सब मैं कोई अपने राजनीतिक बात की नहीं कर रहा हूं, ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में है। कब से कब उन्होंने सरकार बनाई, कहां बनाई और उन्होंने क्या किया, और उसके बाद जनता से हमेशा देश के सामने माफी मांगते रहे, माफी वीर रहे। इन्होंने कभी देश को माना ही नहीं। ये टेक्स्ट बुक में लिखा है, संविधान को माना नहीं। सुनिए सर, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में लिखा है। ये निकम्मी संस्था 2002 तक भारत के तिरंगे को नहीं माना। 2002 तक आरएसएस के हेडक्वार्टर पे कभी तिरंगा ही नहीं लगाया। आज इनको इतनी निजाम साहब तिरंगा रैली निकालेंगे। निजाम साहब, मैं प्रजापति साहब के पास जाता हूं। जाने के पहले एक छोटी सी बात आपके सामने रख दूं। निजाम साहब, जब तक आपके पवन बंसल साहब नया कानून नहीं लेके आए थे
झंडारोहण का कि हर एक के घर पे अलाउड है झंडा। सर सिर्फ सरकारी कार्यालयों के ऊपर झंडा अलाउड था, अपने घर के ऊपर आप झंडारोहण नहीं कर सकते थे, सर वो प्राइवेट कानून संस्थाओं के लाने ऊपर से नहीं कर पहले सकते मिस्टर थे। जिंदल सुप्रीम कोर्ट गए थे सर, सुनिए। जी सुप्रीम कोर्ट में मिस्टर जिंदल गए थे और जिंदल ने सुप्रीम कोर्ट से उसका जजमेंट कराया, ठीक है सर। लेकिन सरकारी सर मतलब आरएसएस कैसे लगा सकती थी? इट वाज नॉट अलाउड सर। जो राजनीतिक दल है उसकी जवाबदारी देश में बनती है कि चलिए नहीं? चलिए, अगर कोई बात नहीं। राजनीतिक दल अपने अपने उस पर तो झंडा लगाते थे ना, उसके लिए सरकारी इशूज तो था नहीं। लेकिन ये एक चीज सरकारी कार्यों क्या है, लेकिन एक चीज है निजाम साहब, जहां तक आरएसएस का प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका के ऊपर सवालिया निशान उठ सकते हैं देश की आजादी के आंदोलन में, लेकिन उसके बाद जहां पर भी डिजास्टर हुआ है, जहां पर भी कोई चीज हुई है, मैंने खुद देखा है आरएसएस के वर्कर्स को निस्वार्थ तरीके से काम करते हुए, उससे कोई डिनाई नहीं कर सकता सर। अगर आपने गुजरात में, अगर आपको याद हो, जब गुजरात में भूकंप आया था जी तो उन्होंने क्या किया, कितनी लूट मार की, मरे हुए घरों से जिन लोगों को निकाल कर उनके सामान लूटे। अभी फुटेज आप निकाल के चेक कर लीजिए, आप पास तो सारे। सर हम लोग थे वहां पे 2002 की आप बात कर रहे हैं, हम लोग थे वहां पे। सबसे पहले तो सुनील दत्त साहब गए थे वहां पे। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं सर आप भी तो थे वहां, ठीक नहीं। सर आप भी तो थे वहां, दत्त साहब गए थे वहां पे पूरा मोबाइल हॉस्पिटल लेकर के, आप सभी लोग थे, कमरुद्दीन भी वहीं पर था, बाबा सिद्दीकी भी वहीं पर थे, आपके बलदेव खोसा साहब भी गए वहां पे, सब लोग गए। सिर्फ कृपा याद नहीं है मेरे को, कृपा शंकर सिंह जी याद नहीं है मेरे को, वो थे कि नहीं थे मुझे याद नहीं है, शायद हम लोगों के आने के बाद वापस आए होंगे तब गए। मैं भुज की बात करता हूँ, भुज अर्थक्वेक की बात कर रहा हूँ। लेकिन लेट मी गो अक्रॉस टू प्रजापति साहब। अविरल मलिक साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ। प्रजापति साहब, व्हाट डिड यू मेक ऑफ द प्राइम मिनिस्टर स्पीच? सर प्राइम मिनिस्टर की जो स्पीच थी उसके मतलब उसका आप विश्लेषण कैसे करेंगे? काफी तारीफ आ रही है हर जगह से, तो वेरी फ्रैंकली, और कांग्रेस की तरफ से तो, कांग्रेस की तरफ से जो सवाल पूछा जा रहा है, जो निजाम साहब को अभी पूछना चाहिए था वो उन्होंने पूछा नहीं, तो मैं आप ही को बोल देता हूं। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने खुद बोला है कि आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये नॉन गवर्नमेंट एनजीओ है तो आज तक रजिस्टर्ड नहीं है सर। हाँ वही पूछा है ना, रजिस्टर्ड भी नहीं है। सर आपने वेट किया मेरे को ये बोलने के लिए, तो आपको बोलना चाहिए था। लेकिन अगर उन्होंने ये कल कहा, मैंने तो, अब कितना उनका 1 घंटों का भाषण है, एक घंटे से ज्यादा का है, 1 घंटा 43 मिनट, लेकिन वो आज तक रजिस्टर्ड एनजीओ भी नहीं है। सर वी डोंट नो। कांग्रेस ने पूछा कि कौन से चैरिटी कमिश्नर के पास आरएसएस रजिस्टर्ड है, yes, और उनके 5 साल के जो ऑडिटेड अकाउंट्स हैं वो भी दे दीजिए, और क्या एफसीआरए की परमिशन है उनको या नहीं है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये सब पूछा है। आप प्रजापति साहब आप बताएं, प्रोफेसर साहब प्लीज। राजीव जी, बड़ा अचंभा होता है, पिछले 11 साल से मोदी जी ने सिर्फ भाषणों के अलावा देश को कुछ दिया नहीं, कुछ नहीं दिया। अभी भाषण कल 1 घंटा देने के बाद आज इन्होंने एक बोला है कि मैं दीपावली पर भारत को कुछ देना चाहता हूं। अरे पिछले 11 सालों पर क्या दिया मोदी जी, ये बताएं। आखिर देश को देना ही है तो अभी क्यों नहीं दे रहे हैं? देश को 2 करोड़ रोजगार, सबसे ज्यादा जरूरत थी रोजगार की, लेकिन रोजगार की स्थिति क्या है ये कई बार आपके चैनल पर आकर के मैं बता चुका हूँ। कहाँ है 2 करोड़ रोजगार? 100 स्मार्ट सिटी बनाने का काम किया था। पूरे भारत में चैलेंज दे रहा हूं मैं भाजपा के प्रवक्ताओं को, भाजपा के नेताओं को, पूरे भारत में 1 स्मार्ट सिटी बनी हो। अरे मोदी जी, कम से कम अपने ही बनारस को क्वार्टो बना देते, क्योंकि बनारस को आपने क्वार्टो बनाने का वादा किया था, कम से कम बनारस को ही बना देते। 100 में कम से कम 1 तो घट जाती, 99 रह जाती, 1 को भी नहीं बना पाए। सब लोगों से बड़े होकर के लंबे चौड़े भाषण दिए थे कि मैं काला धन लाऊंगा, काला धन लाऊंगा। कहाँ है काला धन? 100 दिनों के अंदर काला धन लाऊंगा, वरना मुझे सीट से उतार देना। कहाँ है काला धन? 15 लाख रुपए प्रत्येक नागरिक को देने का काम किया, और लाखों करोड़ों लोगों के जनधन खाते खुलवा करके उनको मिनिमम अकाउंट बैलेंस रखने के नाम पर करोड़ों रुपए की वसूली करने का काम अगर किसी ने किया तो प्रधानमंत्री ने किया। और इन्होंने इनके सांसदों ने गांव गोद लिए थे, गांव। अरे 11 साल हो गए, हर पंचवर्षीय में 5 गांव गोद लेने थे। अगर उन 5 गांव को देखा जाए तो हर सांसद ने अब तक 11 गांव गोद लिए होंगे, यानी कि पूरे भारत के अंदर
5500 गांव, 543 गुणा 11 लगा लीजिए तो 5500-5600 गांव आदर्श गांव बन जाने चाहिए थे। मैं चैलेंज देना चाहता हूं भाजपा के प्रवक्ता को, भाजपा के नेताओं को, एक गांव आदर्श बनाने का काम इन्होंने किया हो तो। जिस तरीके से बात हो रही थी आरएसएस की, अरे 11 साल कभी आरएसएस का नाम नहीं लिया लाल किले से। अब चूंकि ये नियम बना चुके हैं कि 75 साल बाद व्यक्ति रिटायर हो जाता है और उसे देश के किसी संवैधानिक पद पर रहने का अधिकार नहीं रहता, तो अब 75 सुना है, सितंबर में 75 साल पूरे होने जा रहे हैं, इसलिए आरएसएस की तारीफ की जा रही है और हो सकता है आरएसएस को दंडवत भी करना पड़े। क्यों? क्योंकि एक्सटेंशन चाहिए, एक्सटेंशन चाहिए तो आरएसएस याद आ रही है। और अभी आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा कि एक एनजीओ बताया है मोदी जी ने। अरे भाई एनजीओ है तो कहीं तो रजिस्टर्ड होगा, कहाँ किस जगह पर रजिस्टर्ड है? ये फर्जी देशभक्त लोग हैं आरएसएस वाले, इसीलिए आज 2000 तक जाकर के इन्होंने कई मतलब सालों तक अपने नागपुर का जो हेड क्वार्टर है वहां पर तिरंगा फहराने का काम नहीं किया। और तिरंगे का में राजीव जी बड़ा दुख होता है, एक बात कहना चाहता हूँ, बड़ा दुख होता है कि जिस तरीके से इन्होंने तिरंगे का प्रयोग किया राजनीति में, ये शर्म की बात है। एक दिन तिरंगा यात्रा निकाल करके ये इनके देश में तिरंगे का जिस तरीके से अपमान किया जा रहा है, जिस तरीके से लोगों को देखा होगा तिरंगे को यहाँ कहाँ लोग पहने रहते हैं, इतना अपमान कभी भारत में तिरंगे का नहीं हुआ। तिरंगे के लिए लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, तिरंगे के लिए लोग फांसी पर चढ़ गए, तिरंगों के लिए लोग अंग्रेजों की गोली से नहीं डरे। लेकिन आज उस तिरंगे को किस तरीके से राजनीतिकरण करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, ये बड़े शर्म की डॉक्टर बात है। प्रजापति, डॉक्टर प्रजापति, मोदी जी ने यह भी कहा कि विकसित भारत रोजगार योजना, विकसित भारत रोजगार योजना हमारे नौजवानों के लिए, और पूरे देश को संबोधित करते हुए कहा हमको वर्ल्ड मार्केट को कैप्चर करना है, हमको इतिहास रचना है, वर्ल्ड मार्केट को कैप्चर करना है। और नया स्लोगन उन्होंने दिया, दाम कम दम ज्यादा, दाम कम दम ज्यादा। व्यापारियों को कहा कि आपके प्रोडक्ट क्वालिटी टॉप क्वालिटी का होना चाहिए और दाम कम होना चाहिए। ये एक स्लोगन है जबरदस्त, वर्ल्ड मार्केट पर कब्जा करना, नए मार्केट की तलाश करना, क्वालिटी बढ़िया रहना चाहिए, आपका दाम कम होना चाहिए, वर्ल्ड मार्केट को कैप्चर, इतिहास रचना है। डॉक्टर प्रजापति साहब, इतिहास रचना है। प्रीति जी लगता है भाजपा के प्रवक्ता छोड़ करके भाग गए आपकी आगे 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 सर डॉक्टर मलिक भागने वाले नहीं है सर सत्यपाल मलिक जी के पोते हैं, याद रख लो। डॉक्टर साहब भागते नहीं है कहीं, याद रख लो सर। सत्यपाल मलिक का क्या हाल किया है भारतीय जनता पार्टी ने, पूरा देश देख रहा है। 5 जगह का राज्यसभा, 5 जगह के जो है 5 राज्यपाल सांसद और राज्यपाल रहने के बावजूद भी राजकीय सम्मान नहीं दिया गया। और सुनिए प्रदीप जी और राजीव जी, बड़े अचंभे की बात बता रहा हूँ। एक इनके जानू करके कोई प्रवक्ता हैं, हरियाणा के हैं, हिमाचल के हैं, उनको वो जो है लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी और सत्यपाल मलिक की बात करने लगे एक डिबेट में। सत्यपाल मलिक की बात करने लगे, पता है क्या किया है इन्होंने? भारतीय जनता पार्टी से निकालने का काम उस प्रवक्ता को किया है। ये ऐसी विचारधारा के लोग हैं जो सत्यपाल मलिक सर तो आपने भी तो निकाला है, बड़े अचंभे की बात है। सर वो एमएलए को आपने भी तो निकाला है जो बेचारी तारीफ कर रही थी योगी आदित्यनाथ जी की, आपने भी निकाल दिया ना उसको, तो क्या फर्क है? उसके नहीं राजीव जी इसलिए निकाला गया है, उन्हें इसलिए निकाला गया है कि उन्होंने आज से लगभग 1.25 साल पहले राज्यसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के विधायक होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट देने का काम किया था। फिर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए, बड़प्पन दिखाते हुए इन लोगों से ये कहा था कि आप अपना हृदय परिवर्तन कर लीजिए, लेकिन उनका हृदय परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए उन्हें पार्टी से निकाला गया। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए एक देश के उपराष्ट्रपति का
बड़ा अचंभा हो रहा है। मैं देख रहा हूँ देश के उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हो जाता है और मेरे ख्याल से आज तक 20 दिन से ज्यादा होने जा रहे हैं। 20 दिन क्यों, लगभग 1 महीना होने जा रहा है, 20 दिन हो गए पूरे, 20 दिन होने जा रहे हैं और आज तक जगदीप धनखड़ जी की शक्ल किसी ने नहीं देखी। क्या हो रहा है इस देश के अंदर, क्या हो रहा है बताइए। एक राष्ट्रपति का इस्तीफा हो जाता है और राष्ट्रपति को इतना डरा करके धमका करके रखा जा रहा है, उन्हें घर से निकलने की परमिशन नहीं है, मीडिया में जाने की परमिशन नहीं है, मीडिया से अपनी बात करने की परमिशन नहीं है। और मैं आज आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से सतपाल मलिक का हाल किया है इन्होंने, मुझे लग रहा है देश के संवैधानिक पद पर रहे, ऐसी बात मुझे नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन जगदीप धनखड़ को भी कभी भविष्य में ऐसा हुआ तो ये सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी। डॉक्टर प्रजापति, वो मेन आंसर आपने सर, बोला एक नहीं। मिनट। इतिहास रचना है, सर बजाज सर, इतिहास रचना ने मैं डॉक्टर एक प्रजापति बयान को दिलाना चाह रहा था पूछा। नंबियार जी, निजामुद्दीन जी, आपको दो याद मिनट होगा कि उनसे- राजीव गांधी जी की सरकार थी हाँ, और अटल जी बीमार पड़े थे, उनका ट्रीटमेंट उन्होंने अपना पैसा भर के करके उनको लाया। सबको मालूम है। दूसरा आपको याद होगा बहुगुणा जी कांग्रेस छोड़ के चले गए थे, उसके बाद बहुगुणा जी का इलाज किया और फौरन से उनकी डेड बॉडी मंगा के भारत में दिया। अगर वो बीजेपी में रहते तो शायद जिंदगी में कभी नहीं चलिए, आते। चलिए, बहुत ये खुशी। बात डॉक्टर अटल जी ने प्रजापति- खुद कही है पब्लिक डोमेन में। डॉक्टर प्रजापति साहब- करेक्टर है सर, वो ये बदला लेने निजाम वाले साहब लोग आपके हैं। पास आते हैं ना, इस आप बोल देश चुके हैं ना में- सर। अब इस सर देश बोलने में दीजिए ना बच्चे उनको। लोग नहीं पैदा होंगे। अब डॉक्टर प्रजापति साहब, मोदी जी ने कल के भाषण में जो कहा कि हमको इतिहास रचना है, ये वक्त है हमको इतिहास रचने का मौका दिया है ट्रंप ने, जो बोले कि कम दाम में बेस्ट क्वालिटी पूरे देश को कैप्चर करना है, वर्ल्ड मार्केट। एक एकदम मोटिवेशनल भाषण था, लोगों का कहना है मोटिवेशनल भाषण। प्रजापति साहब, प्रदीप जी, हाँ। प्रदीप जी, आपके चैनल पर मैं इस बात को कई बार रखी, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि भारत में त्योहार भारतीयों के, हिंदुओं के, और कब्जा चीन का है। चाहे कोई भी त्योहार ले लीजिए, कोई भी त्योहार ले लीजिए, चाहे वो दीपावली ले लीजिए, चाहे वो होली ले लीजिए, चाहे वो रक्षाबंधन ले लीजिए, ये जो बड़े बड़े जितने भी त्योहार हैं, आप देख लीजिए कहाँ का सामान हम प्रयोग कर रहे हैं। देखिए, बात कह देने, आपने एक शब्द कहा था, मैं आपकी बात पर जा रहा हूँ, स्लोगन। अरे स्लोगन में तो क्या करते हैं, स्लोगन में तो ना जाने कितनी क्या क्या कह देते हैं। स्लोगन केवल स्लोगन ही रह जाते हैं, धरातल पर नहीं उतरते हैं। इसीलिए मैं गारंटी कह रहा हूँ, चैलेंज दे रहा हूँ कि मोदी जी का कोई भी स्लोगन आज तक धरातल पर नहीं उतरा है, चाहे वो 5 करोड़ रोजगार सही, चाहे वो 100 स्मार्ट सिटी सही, चाहे वो जो है 15 लाख रुपए सही, चाहे वो जो है कन्या चाहे वो जो है काला धन सही, और बहुत सारे ऐसे हैं जो उनमें से आज तक कोई भी लगा। देखिए, एक चीज और जो आपकी बात शुरू में चल रही थी, एक देश हमारा सबसे ज्यादा विश्वसनीय था, एक देश जिस पर हम सबसे ज्यादा विश्वास कर सकते थे। 70 साल कांग्रेस रही, लेकिन एक देश हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा, उसका नाम था रूस। लेकिन इनकी विदेश नीति के कारण आज रूस भी हमसे दूर जा चुका है। चीन तो पहले से ही हमें आंखें दिखाता था, अमेरिका तो आंखें दिखा ही रहा है। अमेरिका तो सीधे कहता है, ट्रंप लगातार कह रहे हैं, मोदी इज माई फ्रेंड बट आई एम विद पाकिस्तान, मोदी इज माई फ्रेंड बट आई एम विद पाकिस्तान। ये क्या है जी। इनकी तो लेट मी आस्क अविरल मलिक साहब, डॉक्टर साहब, अविरल मलिक साहब, दो चीजें हैं सर। एक तो जो आरएसएस का मेंशन हुआ, उसके ऊपर लोगों को काफी मिर्चें लगी कि 100 साल आरएसएस के पूरे होने वाले हैं। आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, सबसे बड़ा एनजीओ है पूरी दुनिया में, ऐसा मोदी जी ने कहा, नंबर 1। नंबर 2, जो अभी प्रदीप जी ने बात कही कि यंग लोगों के लिए एक स्पेशल फंड तैयार किया गया है, इनोवेशन के लिए, इन्वेंशन के लिए, नए खोज करने के लिए, और हमें नई मार्केट्स खोजनी पड़ेंगी। वो तो अब मजबूरी है सर, सीधी सादी बात है। अमेरिका ने 50% अगर टैरिफ लगा दिया है तो वील हैव टू लुक फॉर न्यू मार्केट्स, ऐसी क्या बात है, क्योंकि इतना महंगा सामान तो कोई अमेरिका में खरीदेगा नहीं, जहाँ तक मेरा ख्याल है। और अगर खरीदेंगे तो अमेरिका की पब्लिक को सलाम है, दैट्स इट, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू पे द टैरिफ्स। व्हाट द अमेरिकन्स डोंट रियलाइज इज कि जो ट्रम्प टैरिफ्स हैं वो अमेरिका के ग्राहकों को पे करने पड़ेंगे। लेकिन एक खबर आई है सर, अभी उसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन तकरीबन हर एक चैनल पे आई है, और तो और छोड़िए, ऑस्ट्रेलिया का जो सिक्योरिटी थिंक टैंक है, जर्मनी का जो सिक्योरिटी थिंक टैंक है,
और अमेरिकन जो इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में जो हमारे एयर चीफ साहब जो हैं अमरप्रीत सिंह एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह, रियली वंडरफुल मैन, जो उन्होंने कहा कि हमने 5 फाइटर्स, जिसमें से शायद एक F-16 भी था क्योंकि इट वाज इन द हैंगर, तो एग्जैक्टली एक था कि 2 था कि मालूम नहीं है कितने थे, और एक एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम एवैक जिसको बोलते हैं, विच वाज स्वीडिश मेड साहब, वो डिस्ट्रॉय किया हम लोगों ने, अभी जो खबर आई है उसके मुताबिक, और उसका उन्होंने सबूत भी दिए। सबूत थे सैटेलाइट पिक्चर्स बिफोर आफ्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स। लेकिन ये अमेरिकन थिंक टैंक और जर्मनी का थिंक टैंक और ऑस्ट्रेलिया का थिंक टैंक, इन्होंने कहा है कि अभी भी इंडियन एयरफोर्स पूरा सच नहीं बता रही है। क्या नहीं बता रही है? उनके मुताबिक इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के मिनिमम कम से कम 21 जहाज, 21 प्लेन्स खत्म किए हैं, जिसमें से बहुत ज्यादा F-16s हैं। इसलिए शायद ट्रंप साहब की इज्जत रखने के लिए, और ये ना हो कि ट्रंप बहुत ज्यादा नाराज हो जाए, शायद इसलिए नहीं बताया जा रहा है। अब आप बोले मलिक साहब, आपने दोनों प्रवक्ताओं को सुना, ये खबर मुझको देनी थी, उसके अलावा आप क्या बोलना चाहते हैं, बोलिए सर प्लीज। जी नहीं, देखिए, जहां तक विषय है, जिस तरीके से यहाँ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मौजूद हैं और अन्य प्रवक्ता मौजूद हैं, तो ये बिल्कुल स्पष्ट है। अगर आरएसएस की बात कर ली जाए तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, चाहे 1962 का युद्ध रहा हो, 1965 का युद्ध रहा हो, 1971 का युद्ध रहा हो, या कारगिल युद्ध रहा हो, या फिर कोरोना काल रहा हो, संघ के स्वयंसेवकों ने जनता की सेवा की है, पीड़ितों की सेवा की है। जहां बाढ़ आई है वहां भी सेवा करने का ग्राउंड लेवल पे उतर के काम किया है। लेकिन कुछ राजनीतिक दल और कुछ राजनेता हैं, मैं उनका नाम एक तरीके से नहीं लेना चाहूंगा, वो ट्वीट खेलने का काम कर रहे थे जब कोरोना काल था। तो मैं सोचता हूँ अगर वो ग्राउंड रियलिटी को देखें, ग्राउंड रियलिटी को समझें, तो शायद अच्छा होगा, बेहतर होगा। और उसके साथ साथ जहाँ तक विषय हमारी पार्टी का, तो हमारी पार्टी निरंतर जनता की सेवा कर रही है। और उसके साथ साथ जहाँ तक विषय है पर्टिकुलरली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, तो विश्व का सबसे बड़ा एनजीओ है, ये बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसके साथ साथ जहाँ तक विषय है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों का, संघ के उद्देश्यों का, संघ के इतिहास का, संघ की फॉर्मेशन का, इस विषय पर इन्हें पर्टिकुलरली पॉइंट बाय पॉइंट चर्चा करनी चाहिए, तो शायद अच्छा रहेगा। जिस तरीके से अगर पर्टिकुलरली बात कर जाए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण हुआ और उसके साथ साथ उसके उद्देश्य की अगर बात कर ली जाए, तो संघ की शाखाओं में किस प्रकार से सामाजिक समरसता का पाठ पढ़ाया जाता है, जातिवाद मुक्त भारत का निर्माण करने की बात किस प्रकार से की जाती है, उस चीज को इन्हें समझना चाहिए। और उसके साथ साथ अगर ये नहीं समझ पा रहे हैं तो इन्हें शाखा में जाना चाहिए। शाखा में नहीं जाना चाहे तो इन्हें आईटीसी ओटीसी कम से कम देख लेना चाहिए एक बार जाकर, किस तरीके से आईटीसी और ओटीसी में ट्रेनिंग्स दी जाती है। और उसके साथ साथ इन्हें अगर कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, संघ के इतिहास को पढ़ लें, संघ की पुस्तकों को पढ़ लें, तो शायद अच्छा होगा। संघ की एक तरीके से जो सामग्री है उसको देख लें, पढ़ लें, तो शायद बेहतरीन होगा। और उसके साथ साथ जहाँ तक विषय पॉलिटिकल स्टंट एक तरीके से करने का, मैं सोचता हूँ इन्हें पॉलिटिकल स्टंट किसी रूप में नहीं करना चाहिए, फैक्ट और एविडेंस बेस्ड बात करनी चाहिए। और जहाँ तक विषय डोनाल्ड ट्रंप का या अमेरिका का, देखिए जो भी आवश्यक होगा, आज के समय विदेश नीति मजबूत है, देश हमारा मजबूत हाथों में है, और जो भी परिवर्तन आवश्यक होगा और निश्चित रूप से किया जाएगा। डॉक्टर मलिक साहब, आरएसएस ने आज के तारीख में ट्रंप के पॉलिसी को ओपनली क्रिटिसाइज किया, जो वेरियस ऑपोजिशन पार्टी नहीं कर पाए। आरएसएस ने क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि ट्रंप पॉलिसी इज प्रमोटिंग टेररिज्म, इट इज प्रमोटिंग डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज, इट इज यूजिंग ट्रेड वॉर्स एज टूल्स टू वीकन अदर नेशन सॉवरेनिटी। दूसरे देशों का सॉवरेनिटी पर अटैक कर रहा है ट्रंप सरकार और ट्रंप के पॉलिसीज। खुलेआम आरएसएस ट्रंप पॉलिसीज को टोटली आलोचना करते हुए धिक्कार कर दिए। तो ऐसे वक्त पर मोदी साहब ने तारीफ किया, मगर कांग्रेस का कहना है कि आतंकवाद वहीं से पलते हैं। सबसे बड़ा फर्स्ट आतंकवाद नथुराम गोडसे था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बैन किया था। तो यह सब आलोचना कांग्रेस की तरफ से हो रहा है। तो ऐसे जो आरएसएस के क्वालिटीज है, जो ट्रंप सरकार को ओपनली क्रिटिसाइज, आप कैसे देखते हो? दोनों ऑपोजिशन, अखिलेश यादव जी ने भी बहुत आलोचना किया आरएसएस का। बोलिए डॉक्टर मलिक।
नहीं, देखिए जहां तक विषय अखिलेश यादव जी का या समाजवादी पार्टी का, तो वो अच्छी बात है, ठीक बात है। अखिलेश यादव जी हमारे पारिवारिक मित्र हैं, लेकिन जहां तक विषय है अखिलेश यादव जी का और समाजवादी पार्टी का, इन्हें फैक्ट बेस्ड बात करनी चाहिए, एविडेंस बेस्ड बात करनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ अच्छा रहेगा। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है हमारी पार्टी का, तो हमारी पार्टी तथ्यों के आधार पर बात करती है। और लाल किले से जिस प्रकार से स्पीच माननीय मोदी जी की हुई, तो उसमें बिल्कुल फैक्ट्स और एविडेंस के आधार पर उनके द्वारा आरएसएस को सबसे बड़ा एनजीओ विश्व का बताया गया। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो उद्देश्य हैं वो निश्चित रूप से सबको मालूम है, सबके बीच है। और यहाँ सपा के प्रवक्ता मौजूद हैं, ये भी अगर जाना चाहे तो संघ की शाखा में कोई भी जा सकता है। सबके लिए मैं समझता हूँ संघ की शाखाएं खुली हुई हैं। और उसके साथ साथ अगर बात कर ली जाए जहर घोलने की, डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स की, तो डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स किसने की वो भी सब मैं समझता हूँ सबको मालूम है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है भारतीय जनता पार्टी का, हम सामाजिक समरसता की बात करने वाले लोग हैं। और जहां तक डोनाल्ड ट्रंप का पर्टिकुलरली इशू है, तो मैं सोचता हूँ विदेश नीति, रक्षा नीति हमारी मजबूत है, राष्ट्र सर्वोपरि के आधार पर हम चलते हैं, नेशन फर्स्ट के आधार पर हम चलते हैं। और जो भी स्टेप्स नेसेसरी होते हैं वो लिए जाते हैं, टाइम टू टाइम लिए जाते हैं। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से फैसले लेने का है, जो भी आवश्यक फैसले होंगे डोनाल्ड ट्रंप के विषय में या यूएस के विषय में, निश्चित रूप से राष्ट्र के हित में जो भी आवश्यक कदम होंगे उठाए जाएंगे। जी। आई वांट टू टॉक टू यू डॉक्टर मलिक, क्या आपको हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स को रीराइट करने का अधिकार है? जैसे एनसीईआरटी के अभी लेटेस्ट टेक्स्ट बुक्स में कांग्रेस को, नेहरू जी को विभाजन के लिए रिस्पॉन्सिबल बताता। नेहरू जी रिस्पॉन्सिबल है, जिन्ना रिस्पॉन्सिबल है, माउंटबैटन रिस्पॉन्सिबल है। ये बच्चों को सिखाना, पूरे देश के बच्चों को सिखाना कि नेहरू जी टोटली रिस्पॉन्सिबल विभाजन के लिए, क्या ये सही है? जी देखिए, जहां तक विषय है मोहम्मद अली जिन्ना का, तो मोहम्मद अली जिन्ना निश्चित रूप से रिस्पॉन्सिबल थे, इसमें मैं समझता हूँ कोई दो राय नहीं है। अगर बात कर ली जाए मोहम्मद अली जिन्ना की, तो जिस तरीके से अपने सेल्फ बेनिफिट के लिए वो पार्टीशन कराने का काम किया गया, और आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको मैं समझता हूँ मालूम होगा। और उसके साथ साथ जहां तक एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स का विषय है, जब कोई विद्यार्थी, कोई छात्र 12वीं तक पहुंचता है उसी टेक्स्ट बुक को पढ़ते पढ़ते, और अन्य चीजों का भी वो अध्ययन करता है, लाइब्रेरी भी कंटिन्यू बेसिस पे जाता है। और आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, मैं सोचता हूँ इंटरनेट पे जब वो अध्ययन करता है तो अलग अलग चीजें उसे देखने को मिलती हैं, चीजें डिफर करती हैं, और वो उस चीज को समझ पाता है कि किस तरीके से एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स में अपने एक तरीके से मैं समझता हूँ साजिशन, कम्युनिस्ट एजेंडा हो या कांग्रेसी एजेंडा हो, उसको चलाने का काम कुछ लोगों के द्वारा किया गया था। और वो भी सबको मालूम है, डॉक्टर मलिक, इतिहास को किस तरीके से तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया था, वो सब जानते हैं। लेकिन डॉक्टर मलिक, मैं आपसे आपके सामने एक बात रखना चाहता हूँ कि जो एनसीईआरटी की जो पहले किताबें थी, बिपिन चंद्रा साहब, रोमिला थापर जी, इन सब लोगों ने, इरफान हबीब साहब, इन सब लोगों ने, इनका बोर्ड बैठा करता था। अगर आप उनको भी पढ़ें तो उसमें भी अभी क्या है कि अभी की जो एनसीईआरटी की किताबें उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया है, लेकिन वहां पर इनडायरेक्ट एडमिशन तो थी कि भाई गांधी जी ने बहुत कोशिश करी, अपने क्या नाम है उनका, सरदार बलदेव सिंह हो गए, अपने पंडित नेहरू हो गए, वल्लभ भाई पटेल हो गए, मौलाना आजाद हो गए, सबने बहुत कोशिश करी जिन्ना को बनाने की कि भाई एक ही देश रहना चाहिए, लेकिन आखिर में सब मान गए। तो उसमें कोई नई बात तो नहीं है। लेट्स बी वेरी क्लियर, कांग्रेस डिड एग्री टू द पार्टीशन के डॉक्यूमेंट पे साइन किया किन लोगों ने? मोहम्मद अली जिन्ना एंड लियाकत अली खान फ्रॉम द मुस्लिम लीग, फ्रॉम द इंडियन साइड पंडित नेहरू, मौलाना आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड सरदार बलदेव सिंह। सरदार बलदेव सिंह ऑफ कोर्स साइन फॉर द सिक्स ऑफ पंजाब। तो उसमें कोई नई बात तो नहीं है, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। एंड मुझको ये लगता है, ये मेरी व्यक्तिगत राय हो सकती है, मुझको ऐसा लगता है कि हमें तो थैंक यू बोलना चाहिए मोहम्मद अली जिन्ना का। मोहम्मद अली जिन्ना के लिए हमें तो बहुत थैंक यू बोलना चाहिए कि थैंक यू वेरी मच कि इस बला को आपने हमारे देश से दूर किया। कैन यू इमेजिन अगर ये लोग हमारे साथ होते तो क्या होता आज? सर, आज हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हैं पूरे विश्व की। अगर ये लोग हमारे साथ होते तो कहां होते? नंबर 150 पे होते। मैं सीधी बात आपको बोल रहा हूं। यू माइट थिंक इट्स फनी, इट्स नॉट। इट वाज अ वेरी वाइज डिसीजन ऑन द पार्ट ऑफ पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनफैक्ट आखिर में अगर आप उस टाइम के कॉन्स्टिट्यूशन पेपर्स पढ़ें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एडवाइस किया पंडित नेहरू को, मान जाइए, जाने दीजिए, उस इलाके को जाने दीजिए, क्योंकि वो कंट्रोल करना असंभव है, नहीं कर पाएंगे हम लोग। ये जो हिंदुस्तान मिल रहा है ये बहुत शक्तिशाली हिंदुस्तान बनेगा। सो आई थिंक दोज लीडर्स, जितने भी लीडर थे उस वक्त 1947 के, दे वर वेरी वाइज, अकल वाले लोग थे सर। उन्होंने दुनिया देखी है, कितनी बार जेल गए, कितनी बार सब कुछ किया। दे वर एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। लेकिन मैं आपसे एक सवाल है मेरा, वो ये है सर,
ट्रंप साहब ने जो हमारे साथ किया है, इट इज अ वेकअप कॉल फॉर द कंट्री। भारत की आंखें खोल दी हैं डोनाल्ड ट्रंप ने, कि जैसा कि अभी प्रजापति साहब बोल रहे थे, निजाम साहब बोल रहे थे, और इसके पहले वाजपेयी जी भी यही बात बोला करते थे कि हमारा अगर कोई असली मित्र रहा है तो वो रूस रहा है, रशिया रहा है। हमें बहुत परख के चलना चाहिए आगे विदेश नीति में। जहां तक के अमेरिकन का सवाल है, सर अमेरिका ने जिस भी देश की पैरवी करी है वो देश टूटा है, उस देश की हालत खराब हुई है। अर्लियर दे यूज्ड टू सपोर्ट सदाम हुसैन को उन्होंने डिथ्रोन कर दिया। दे यूज्ड टू सपोर्ट जनरल याहिया खान, उस देश के उन्होंने दो टुकड़े कर दिए। सीरिया को सपोर्ट करते थे, सीरिया का मतलब आज की तारीख में क्या हाल है सीरिया का आपके सामने है। अफगानिस्तान का क्या हाल कर दिया आपके सामने। सर अमेरिका की दोस्ती जिसने भी करी है उसका देश टूटा है। मैं सीधी बात आपको बोल रहा हूं, हम लोगों को बड़े आराम से बहुत अकल से चलना चाहिए। वी शुड ओपन अप द मार्केट्स। ब्रिक्स जो है, BRICS, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, एक नई करेंसी लानी चाहिए। वी शुड फॉरगेट अबाउट द डॉलर। लेकिन चाइनीज का यहां पर जो प्रदीप जी ने मेंशन किया वो डाउट है, उसके ऊपर मैं आपसे जानना चाहता हूं। चाइनीज ये कहते हैं कि ट्रंप साहब इधर से बोलेंगे सारे टैरिफ खत्म कर दिए, मोदी चले जाएंगे वापस ट्रंप साहब के पास। आई होप दैट डज नॉट हैपन सर। मैं उम्मीद करता हूं ऐसा नहीं होगा। और अब तो मोदी जी ने कमिटमेंट दिया सर लाल किले से कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है अब दोबारा वैसे ही लागू नहीं होगी। आई होप ट्रंप साहब के प्रेशर में हम नहीं आएंगे और इंडस वाटर ट्रीटी को दोबारा स्टेटस को रिटर्न नहीं करेंगे। अब आप बोलें सर। मलिक साहब जी, देखिए जहां तक विषय है पाकिस्तान का और सिंधु जल नदी के समझौते का, उस पर हमारे स्टैंड का, उस पर जो हमने स्टैंड लिया उस पर कल भी हम काम थे, भविष्य भी रहेंगे। और उसके साथ साथ जहां तक पर्टिकुलरली चीन और पाकिस्तान का विषय है, चीन पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने का काम हमारी सेना और हमारी सरकार ने किया, डिप्लोमेटिकली भी किया, ग्राउंड लेवल पे भी किया, आर्मी के बेसिस पे भी किया, वो सबने स्पष्ट देखा। और टेररिज्म पे भी एक तरीके से कड़ा प्रहार हमारी सरकार के द्वारा किया गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। और साथ साथ जहां तक मलिक साहब एक मिनट आपको रोकूं जरा, एक मिनट आपको रोकिए, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है, प्लीज शो दैट ऑन फुल फ्रेम। दैट इज द RSS marching on 26th of January 1963 on the invitation of पंडित नेहरू। पंडित नेहरू के इनविटेशन पर ये RSS की टुकड़ी है जो मार्च कर रही थी हमारी फौज के साथ 26 जनवरी 1963 को। अब आप बोलें आगे मलिक साहब प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल, इस चीज से एक तरीके से मैं सोचता हूँ मोहर लग जाती है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक राष्ट्रवादी संगठन है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है एक तरीके से इंडिया अलायंस वालों का, तो इंडिया अलायंस वाले तो बेसिर पैर की बात जिस तरीके से करते हैं सबको मालूम है। संजय राउत और उद्धव ठाकरे उधर एक तरीके से कह रहे हैं कि भाई उनके मार्गदर्शक, प्रेरणा स्रोत, आदर्श वीर सावरकर हैं, तो इधर वो टी-शर्ट पहनकर राहुल गांधी जी कह देते हैं एक तरीके से कि भाई वो माफी वीर हैं। अब उसके बाद इन दोनों का अलायंस भी है, गठबंधन में भी शामिल है, इन दोनों की एक राय नहीं है और अलग अलग राय रखते हैं। एक तरीके से जमीन आसमान, एक तरीके से मैं सोचता हूँ जमीन आसमान का अंतर इनकी राय में है, उसके बावजूद भी ये गठबंधन में बैठे हैं या ठगबंधन में बैठे हैं, ये समझ से बाहर है। इन्हें कम से कम एक राय कर लेनी चाहिए अपने इस विषय पे। और उसके साथ साथ जहां तक मैं सोचता हूँ विषय है अमेरिका का, डोनाल्ड ट्रंप का, जहां तक विषय बिल्कुल स्पष्ट है, जो आवश्यक होगा कदम उठाए जाएंगे, देश का घाटा किसी रूप में बर्दाश्त नहीं होगा। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है देश का अपमान का, देश का अपमान किसी को नहीं करने दिया जाएगा, देश का अपमान सहन भी नहीं होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी सरकार मजबूत है, सशक्त है, सरकार भरोसा रखना चाहिए। निजामुद्दीन जी कल का भाषण में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्लियर कट कहा, किसान, पशुपालक, मछुआरे, इनके इंटरेस्ट को मोदी कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, कभी जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे इनके हकों से। और आगे आर्मी को फुल फ्रीडम, बोले हमारे आर्मी समय, दिन और जगह, हमारे आर्मी को फुल लिबर्टी दिया है तय करने के लिए कि वहां से अटैक होगा तो रिपल्स किस प्रकार से करे। ये तीन चीज हमारे आर्म्ड फोर्सेस डिसाइड, तो इतने मोटिवेशनल हर चीज कवर कर लिया। इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड है, देश प्रोटेक्टेड है, सीमा प्रोटेक्टेड है, फिर भी आप मानते नहीं कि मोदी जी का भाषण अच्छा है। सर ऐसा है कि जब मोदी जी भाषण करते हैं तो ऐसा लगता है किसी बच्चे के लॉलीपॉप दे रहे हैं बहुत बढ़िया से। आपने खुद देखा कि क्या पूरे देश के किसी एक आदमी ने फौज के खिलाफ बोला? क्या फौज को इस देश के किसी आदमी ने रोकने की कोशिश की? क्या हमको तो चांस था ना कश्मीर लेने का, हमको तो चांस था ना, जो हमारा ऑक्युपाइड कश्मीर है उसको लेने का चांस हमारे हाथ में था ना। किसने रोका उनको?
मैं वही कह रहा हूं ना कि प्रधानमंत्री से बड़ा झूठा इस देश में 47 से लेकर आज तक कोई आया ही नहीं। प्रधानमंत्री जो कहते हैं उसका उल्टा करते हैं। अगर आप खुद देखिए निजाम कि साहब एक उनको बात चांस बोलूं, था, निजाम साहब हमारी माफ मिलिट्री, कीजिएगा, हमारी पूरी फोर्सेस काबिज हो चुकी थी और निजाम मोदी जी साहब की माफ मीडिया झूठ कीजिएगा, बोलने पर खुली थी। निजाम साहब माफ क्या? कीजिएगा, माफ कीजिएगा, पार्लियामेंट के बाहर राहुल गांधी जी की का खुद का बाइट है, आप बोले तो मैं निकाल के दिखा दूं। उन्होंने कहा, क्या राहुल गांधी जी का खुद का बाइट है पार्लियामेंट के बाहर, जहां पर क्या? उन्होंने बोला कि हम लोगों ने भीख मांगी पाकिस्तान से, हम लोगों ने बोला पाकिस्तान को कि हमें सीजफायर चाहिए। तो सर और राफेल कितने गिरे? तो सर ये आर्म फोर्सेस का ये अपमान है तो राहुल क्या गांधी है? का सुनिए साहब, ये जो है, ये मेरी बात सुन लीजिए। बोलिए बोलिए सर। ये आप जवाब देखिए आपके दोनों रक्षा मंत्री और दूसरे का, जिन्होंने देश का सामने ये कहा कि पाकिस्तान हमसे गिड़गिड़ा रहा था कि हमको नहीं लड़ना है इसलिए हमने छोड़ दिया। आप उसका उसका पूरा चीज दिखाइए ना। राहुल गांधी ने जो है उसके ऊपर तंज किया है कि ये कह रहे हैं राहुल गांधी का एक statement तरफ नहीं से है। आलू डालोगे दूसरी तरफ से सोना वो निकलेगा, वो वो भी वाला ही। वो भी जो है ये बीजेपी की खुद की भेजे की उपज है कि लेकिन राहुल जी ने कहा कि हम लोगों ने कहा पाकिस्तान को सीजफायर के लिए, राहुल गांधी जी ने ये कहा। पाकिस्तान ये कह रहे हैं, राजनाथ सिंह का स्टेटमेंट है, उनके दूसरे नेता का स्टेटमेंट है कि साहब वो तो गिड़गिड़ा रहा था इसलिए हमने जो है वो सीज फायर कर दिया। और अमेरिका कह रहा है कि नहीं साहब, हमने, अमेरिका ने 32 बार कहा है सर, 32 बार। ये कोई झूठ बात है क्या? सर 39 बार कहा है, आप गलत बोल रहे हैं। सबसे बड़ी बात क्या है? सर गलत बोल रहे हैं आप, 39 बार कहा है, सर 39 मैं टाइम्स। कह रहा हूं कि अगर पार्लियामेंट चल रही थी ना जी। तो देश के पार्लियामेंट के सम्मानित सारे सांसद थे, सारे सांसद के सामने माननीय प्रधानमंत्री जी को कहना चाहिए ना कि सच्चाई यह है। प्रधानमंत्री भाग रहे हैं रास्ता छोड़कर, और अभी तो प्रधानमंत्री की तरह हमारे आदरणीय राजनाथ सिंह जी झूठ बोलने लगे हैं। वो जो बात कहते हैं मीडिया तुरंत उनके अगेंस्ट जो चीजें कह रहे थे उसको दिखाती है। तो मैं ये समझता हूं कि झूठी बातों का बेहतरीन प्रेजेंटेशन प्रधानमंत्री जी देते हैं। क्या प्रधानमंत्री? लेकिन आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड, आई दैट स्टिल डजंट आंसर द क्वेश्चन सर। उसके मतलब जवाब नहीं आता। जस्ट पूरा करने दीजिए सर। मैं कह रहा हूं कि जो मीडिया ने प्रधानमंत्री की मौजूदगी में ये देश के साथ गुमराही का पूरा ड्रामा खेला पाकिस्तान का जो दिखा रहा था, क्या उन मीडिया घरानों पर प्रधानमंत्री महोदय ने कोई कार्रवाई की क्या? या उनके मिनिस्टर ने जिसके अंडर में मीडिया आती है, क्या उन्होंने कोई कार्रवाई की क्या? तो इससे ये लगता है। But why did Rahul Gandhi say this, sir? Why did Rahul Gandhi say that India asked for a ceasefire? कि इंडिया ने पूछा था सीजफायर के लिए, हम लोगों ने मांग की थी सीजफायर के लिए। Why did he say that? I've seen it. सर उन्होंने उसी बात, देखिए मैं आपको वही कह रहा हूं, जो चीज इनके नेताओं ने कहा जब ट्रंप का विषय आया तो उन्होंने कहा नहीं नहीं साहब, वो पाकिस्तान वाले हमारे पीछे लगे थे, हाथ पैर जोड़ रहे थे कि सीज फायर कर लीजिए। कांग्रेस तो पूरी ताकत से कह रही थी, हमारे सारे प्रवक्ताओं का बयान है कि इससे बढ़िया मौका हमको कहां मिलेगा, हमारी सेना ताकत के साथ घुसी है और मारी भी है, उसके बाद सिर्फ कब्जा लेके आना है। तो भैया तुरंत राजनाथ सिंह का बयान आता है कि हमें तो नहीं चाहिए, हमने इसके लिए थोड़ी किया था। ये सारे बयान तो माननीय गृह मंत्री और माननीय डिफेंस मिनिस्टर जी के हैं। तो सारी चीज तो पब्लिक डोमेन में है सर। आप कांग्रेस को इस विषय में ब्लेम नहीं कर सकते और ना कभी आरएसएस के देश में कांग्रेस से तुलना कर सकते हैं, क्योंकि उनका चाल चरित्र सर वो एनजीओ है, आपका एनजीओ थोड़ी है। है सर आपकी तो पॉलिटिकल पार्टी है। तो मोदी जी ने हाँ, कहा है कि लेकिन आरएसएस तो एनजीओ है, आरएसएस सर, तो आज पॉलिटिकल पार्टी थोड़ी है। देखिए वो पॉलिटिकल नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल के चेहरे तो उसी के हैं सब ना। बीजेपी उन्हीं का चेहरा है, अभिनव भारत उन्हीं का चेहरा है, आरएसएस के बाद हिंदू महासभा उन्हीं का चेहरा है। ये सारे चेहरे तो वहीं से आते हैं ना। जी आप कैसे कह सकते हैं पॉलिटिकल नहीं है वो? राइट, सो लेट मी गो टू I just want to ask him, आरएसएस ने क्रिटिसाइज किया ट्रम्प के पॉलिसीज का, राहुल जी ने नहीं क्रिटिसाइज किया। राहुल जी ने भले कहा कि हमारे इकोनॉमिक ब्लैकमेल हो रहा है, बट जिस प्रकार से आरएसएस ने क्रिटिसाइज किया, आरएसएस ने कहा कि आप डिक्टेटर हो, आप डिक्टेटर हो। आरएसएस ने उनको कहा कि आप डिक्टेटर हो, आप टेररिज्म को प्रमोट कर रहे हो। फॉरेन पॉलिसी, आप उसमें आपको आइडिया लग गया होगा कि भारत लड़ रहा था युद्ध, दुनिया के 100 कितने देश में हमारे माननीय प्रधानमंत्री स्वयं जाकर अपना ढिढोरा, अपनी छाती खुद पिटवाते रहे, और जब युद्ध का मौका आया और जब हमको चांस मिला तो हमारे साथ एक भी देश नहीं खड़ा था, एक भी सिंगल देश।
आप बताओ कि खड़ा था क्या? एक देश का नाम बताओ जो खड़ा था। हमारा बहुत अच्छा संबंध था ईरान सर, से, उससे और क्या तात्पर्य है आपका ईरान कि के एक साथ देश भी नहीं हमने खड़ा था? रिश्ता मतलब बिगाड़ लिया। मेरी ये समझ में नहीं आया, मतलब एक भी देश नहीं खड़ा था, मतलब कौन सा देश हमारे साथ खड़ा युद्ध में? जिसने सर, कहा हर कि देश ने पाकिस्तान ये कहा गलत है, कर रहा है। हर देश सर, ने। एक देश का हमको स्टेटमेंट दिखाइए ना। सर मैं भेज कौन देता से हूं। देश ने कहा उसको और तो और गलत कर रहा है? छोड़िए, वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस जो हिंदुस्तान से गए थे उस वक्त, पहला स्टेटमेंट उनका ये आया था कि भारत को पूरा हक है अपने आप को डिफेंड करने के लिए, सर अपनी वो तो रक्षा हर करने के हर लिए। राज्य को है। देखिए ठीक। वो सवाल सो नहीं और है। आपको क्या चाहिए? सर In ऐसा fact, नहीं even हो in, सकता, बोल दो। sir, जैसे उन्होंने 1971 वॉर में उनको- भी 1971 वॉर में भी कौन सा देश हमारे साथ खड़ा था अपार्ट फ्रॉम सोवियत यूनियन, जिनके साथ हमारी ट्रीटी थी? हर एक देश जो था वो तकरीबन पाकिस्तान के साथ था। ये भी आपको बता दूं, बीबीसी हो, एसोसिएटेड प्रेस हो, रॉयटर्स हो, वॉल स्ट्रीट जर्नल हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, सर अभी तक उनके आप रिपोर्ट्स निकाल करके देख लिए, 15 दिसंबर तक कह रहे थे कि पाकिस्तानी फौज ने हिंदुस्तानियों की हालत खराब कर दी है, और 16 दिसंबर को नियाजी साहब ने सरेंडर कर दिया। उसके बाद दे डिड नॉट इवन अपोलोजाइज, नॉट बीबीसी, नॉट सीबीएस, नॉट एबीसी, नोबडी अपोलोजाइज। सीएनएन उस वक्त नहीं होता था, नोबडी अपोलोजाइज। हर एक कोई पाकिस्तान के फेवर में था। ये तो वेस्टर्न मीडिया और वेस्टर्न पावर्स का शुरू से ही रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। लेकिन उनको मौका कौन दिया बजाज साहब? उनको हिंदुस्तान के लिए जो नकली मीडिया है, गोदी मीडिया है, उसने चांस दिया ना। उनको सर चांस किसने अब दिया? उसके बारे में मैं क्या कमेंट उनको करूं? हमारे ऊपर कमेंट्स करने का मौका किसने दिया? यहां पर हमारे मेरा देश की गोदी मीडिया ने मेरा दिया और था, प्रदीप सर। जी का ये मत है सर। मैं क्लियर आपको एक बार फिर बोल दूं, भाई यहां पे सच बोलते हैं। देखिए साहब, सच जो होता है ना उसमें बहुत बड़ी शक्ति होती है। इस तरह इसलिए वी आर वेरी ग्रेटफुल। आप पंडित नेहरू को देखिए, इंदिरा जी को देखिए, 1962 में चाइना के साथ वॉर चल रही है, स्पेशल सेशन बुलाया गया पार्लियामेंट का। पंडित नेहरू ने खुद खड़े होके एक एक चीज का ब्यौरा दिया कि यहां पर हम लोगों की ये शिकस्त हुई, यहां ये शिकस्त हुई, यहां ये शिकस्त हुई। ये दो जगह हैं, एक तो वो नथुला पास जो थी, सॉरी रेजंगला पास, वहां पर अपने मेजर शैतान सिंह और वो जो 13th कुमाऊं रेजिमेंट, वो उनके 120 लोग शहीद हुए वहां पे। और उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में एक जगह थी, बाकी हर जगह पे हम लोग हारे हैं। पंडित जी ने बेधड़क बिल्कुल क्लियर स्टेटमेंट तो वही आप सोचिए ना कि नहीं, और आपको प्रधानमंत्री सर पूरी बात सुन लो ना। 1965 में लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी पूरा ब्यौरा दिया। हाँ, एक जगह पे लाल बहादुर शास्त्री जी चूक गए। जाने के पहले लोकसभा में उन्होंने स्टेटमेंट दी थी। इनफैक्ट लोकसभा नहीं सर, आई थिंक प्रोफेसर प्रजापति माइट बेयर मी आउट, उन्होंने ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट थी, ज्वाइंट हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, जहां पर लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि हाजी पीर पास वापस करना सवाल ही पैदा नहीं होता। ताशकंद में उन्होंने जाकर के हाजी पीर पास वापस कर दी, लेकिन पार्लियामेंट बुलाया था, पार्लियामेंट के अंदर एक एक चीज का ब्यौरा दिया। वही चीज 1971 में इंदिरा जी ने करी, इनफैक्ट वही चीज 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने करी। अब मेरा ये कहना है कि हमारी सरकार ऐसा क्यों नहीं करती? अभी वही भाई, अगर सर वही आप सोचिए ना कि मोदी जी से ताकतवर प्रधानमंत्री कौन था? अगर इनके लोग कहते हैं कि विश्व गुरु हमारा प्रधानमंत्री दुनिया का सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री है, तो देश के साथ क्यों झूठ बोल रहे हैं? पूरे सांसद सर कहां झूठ बोला है सर? के अंदर किस विषय में झूठ बोला है? आपको पूरा चीज देना चाहिए सर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कहां झूठ बोला है, बताइए ना। नहीं, बिल्कुल झूठ बोले। जैसे आप खुद देखिए कि माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और माननीय डिफेंस मिनिस्टर की ड्यूटी थी कि संसद के अंदर आके बताना चाहिए। आपकी मीडिया जो गोदी मीडिया है वो पूरी दुनिया को गुमराह कर दिया कि हमने रात में ये कर दिया, वो कर दिया। अरे साहब, हमारी सेना लड़ रही है, आप उसकी बात तो सोचिए। सेना जो करेगी वो ताकत से करेगी, पूरा देश सेना के साथ खड़ा रहा। सारे राजनीतिक दल हमारे विचार किसी से मिले ना मिले, लेकिन देश के मामले में हम उनके साथ कंधे से कंधा तो सर मिलाकर मीडिया के पूरी लिए ताकत से खड़े रहे। तो लेट मी गो टू राकेश प्रजापति साहब। तो सर मीडिया के कुछ लोग हैं जो नौटंकी करते हैं हमेशा। डॉक्टर कुछ प्रजापति नहीं, 90% सर, 90%। सर डॉक्टर प्रजापति, कैन आई हैव योर अटेंशन सर? यस सर। राकेश प्रजापति जी, तो मीडिया के लिए आप मोदी जी को क्यों ब्लेम कर सकते हैं सर? आप मीडिया के लिए मोदी जी को क्यों ब्लेम कर रहे हैं? कोई कहता हम हमारी फौज कराची में पहुंच गई, कोई कहता हम लाहौर में हमने झंडा फहरा दिया, रावलपिंडी में हिंदुस्तान की फौज की टुकड़ी जा रही है। आप ये बताएं, उसके लिए मोदी जी कैसे रिस्पॉन्सिबल हो गए सर? प्लीज। मोदी जी क्यों नहीं रेस्पॉन्सिबल है? ऐसी मीडिया पर सर गवर्नमेंट डजंट ओन दैट मीडिया।
कानून की चाबी चलनी चाहिए ना, चाबुक चलनी चाहिए। ऐसी मीडिया पर मुकदमा भारत की सरकार द्वारा करनी चाहिए। ये अब्दुल मलिक जी बताएंगे कि आखिर जो मीडिया चैनल ये दिखा रहे थे कि हमारी सेना ने इस्लामाबाद पर कब्जा कर लिया है, हमारी सेना ने लाहौर को तहस नहस कर दिया है, हमारी सेना ने और भी कराची पर ये कर दिया है, ऐसे चैनलों को झूठ परोसने के लिए ये भारत के लोगों की भावनाओं के, करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत करने के लिए ऐसे न्यूज चैनलों पर कार्रवाई करनी चाहिए। ये कार्य मोदी जी को ही करना पड़ेगा ना, ये कार्य भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ेगा। अब इसके लिए नेहरू जी तो आएंगे नहीं, नेहरू जी को बुला लीजिए या फिर नेहरू जी आ जाए, क्योंकि ये तो कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि इस देश में इन्होंने नेहरू जी मीडिया के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते थे। और देखिए, जहां तक बात रही, अभी अब्दुल मलिक जी कह रहे थे आरएसएस के बारे में कि आरएसएस में चले जाएं, और मुझसे कह रहे थे आरएसएस में चले जाएं, आरएसएस में जाकर के देखें वहां जाति नहीं है। अरे 100 साल हो गए अब्दुल मलिक जी, हंसी आती है। एक पिछड़ा आरएसएस का आज तक प्रमुख नहीं बनाया, एक दलित आपने प्रमुख नहीं बनाया। कौन बनाए आप भी जानते हैं, आपके चाचा जी थे, मुझे तो नहीं पता, आज पता चला कि सतपाल मलिक जी आपके चाचा जी थे। आपको तो कम से कम इस्तीफा दे देना चाहिए कि आपके चाचा का सम्मान नहीं किया तो आपका क्या सम्मान होगा। जो व्यक्ति 5 राज्यों का राज्यपाल रहा हो, कई बार सांसद रहा हो, और जिनको तो हम देख करके बड़े हुए थे, उस व्यक्ति का सम्मान नहीं किया, आपको तो इस्तीफा दे देना चाहिए ऐसी पार्टी के साथ। और आप वहां पर सर वही सवाल आपसे भी पूछा जा सकता है। आरएसएस का एक भी प्रमुख आज तक दलित नहीं बना, आज तक पिछड़ा नहीं बना, महिला भी नहीं बनी सर। करेक्ट। और ना बनेगा, ये गारंटी है, चैलेंज है। आप कह रहे हो जाति व्यवस्था खत्म हो जाती है आरएसएस में जाने के बाद, कहाँ जाति व्यवस्था खत्म हो जाती है बताइए, कैसे जाति व्यवस्था खत्म हो जाती है? सर इसके पहले कि अविरल मलिक जी आपसे सवाल पूछेंगे, आई वांट टू आस्क दिस सर। यस प्लीज सर। यस इसके पहले कि अविरल मलिक जी आपसे ये सवाल करें, मैं कर लेता हूं। अविरल मलिक जी, आई होप यू डोंट माइंड। सर प्रजापति साहब, समाजवादी पार्टी का नॉन यादव अध्यक्ष कब बनेगा सर? समाजवादी पार्टी का कोई गैर यादव अध्यक्ष कब बनेगा, वो भी बता दीजिए सर। आप आरएसएस के ऊपर पॉइंट कर रहे हैं ना, बीजेपी के ऊपर पॉइंट कर रहे हैं, या बीजेपी जाने दीजिए, आप आरएसएस के ऊपर पॉइंट कर रहे हैं ना। आरएसएस का सिर्फ एक ही ठाकुर हुआ है, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, जो के अध्यक्ष बने, बाकी सारे के सारे यहीं के चितपावन ब्राह्मण हैं, वो बने हैं सर। अब आप बता दीजिए नॉन यादव कब बनेगा सर समाजवादी पार्टी का? आप ही बने, आप इतने पढ़े लिखे डॉक्टर साहब, आपको बनना चाहिए। प्रजापति समाज का इतना जबरदस्त तरीके से रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो, आप ही बन जाए तो हम लोग सब खुश रहेंगे सर। वील बी वेरी हैप्पी इफ ही गोज टू द राज्यसभा एटलीस्ट, और द लोकसभा, राकेश प्रजापति साहब। तो आप अभी क्यों नहीं है सर? आप क्यों नहीं? अच्छा, ये सवाल बहुत अच्छा है, आप क्यों नहीं अध्यक्ष अभी समाजवादी पार्टी के? ये बताओ, मुझे जवाब देने दीजिए। बोलिए सर प्लीज। राजीव जी, समाजवादी पार्टी का एक संविधान है, उस संविधान के तहत हर पार्टी के मेंबर को जब राष्ट्रीय अधिवेशन होता है उस समय पर चुनाव लड़ने का अधिकार है। जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ने का अधिकारी है, जो समझता है, जाकर के आवेदन करता है, चुनाव सम्मति बनती है, उस सम्मति में जो भी व्यक्ति जाकर के वहां पर लड़ेगा वो उससे। और रही बात राज्यसभा और विधानसभा परिषद बैठने की, मैं गारंटी से कहना चाहता हूँ, कई बार मैं इनके प्रवक्ताओं से प्रश्न कर चुका हूँ, अब्दुल मलिक जी से भी मेरा प्रश्न वही है, मैंने कई बार प्रश्न किया है कि प्रजापति समाज के 543 लोकसभा में 3 बार इनकी सरकार बनवा दी। अब्दुल जी सुन लीजिए आज, ठीक है ना, क्योंकि और आप मेरे साथ कई चैनल पर बैठते हैं, लेकिन वहां पर थोड़ा सा समय कम रहता है। यहाँ हमारे राजीव जी और प्रदीप जी मेहरबानी है हमारी पर समय दे देते हैं। 543 लोकसभा सीटें हैं, एक भी प्रजापति नहीं दिया है आज तक आपकी पार्टी ने टिकट, ना 2014 में दिया, ना 2019 में दिया, ना 2024 में दिया। आज तक एक प्रजापति को टिकट नहीं दिया है। पूरे भारत के अंदर 26 प्रदेश, 28 प्रदेश है, एक भी राज्यपाल प्रजापति समाज का नहीं बनवाया, एक भी प्रजापति मुख्यमंत्री नहीं बनवाया, एक भी प्रदेश का आपने प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया। 750 जिले हैं, 750 जिले पूरे देश के अंदर, एक प्रजापति आपने, आप सबकी साथ सब जातियों की बात कर रहे थे, 750 में एक भी प्रजापति जिला अध्यक्ष नहीं है आपके अंदर।
उत्तर प्रदेश के अंदर 75 जिले हैं जिसमें एक भी प्रजापति जिला अध्यक्ष नहीं है। आपकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में एक भी प्रजापति नहीं है। आपकी प्रदेश की कार्यकारिणी में एक भी प्रजापति नहीं है। आप बताइए किस तरीके से, कहाँ कहाँ सबका साथ और सबका विकास की बात करते हैं? कहाँ है प्रजापति? क्या प्रजापति आपकी सब जातियों में नहीं आता? क्या प्रजापति हिंदू नहीं है? बहुत बड़े प्रश्न है ये, बहुत बड़े प्रश्न है। इनका उत्तर आप देना चाहते हैं? डॉक्टर साहब ये देंगे, अविरल मल्लिक, डॉक्टर मल्लिक आपका जवाब देंगे। पहले मैं आपको योगी आदित्यनाथ जी ने आज जो कहा उस पर आपसे पूछूंगा कि व्हाट इज योर रिस्पॉन्स। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में हमको डेवलपमेंट के हब में ट्रांसफर कर लिया है। डेवलपमेंट इस कदर है, 45 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्रपोजल था, 15 लाख करोड़ हमने इंप्लीमेंट किया। योगी आदित्यनाथ जी का कहना है 15 लाख करोड़ इंप्लीमेंटेड, 8.3 लाख यूथ को हमने सरकारी नौकरी दी, 8.3 लाख यूथ, और 1.62 करोड़ यूथ को हमने एमएसई में जॉब किया। एमएसई में पर कैपिटा इनकम 42,000 से 1.2 लाख बन गया। हाउ डू यू, क्या ये आंकड़े सिर्फ आंकड़े, क्या इज गिविंग सब्सटैंशियल डाटा लेके बात कर रहे हैं कि 45 लाख करोड़ का प्रपोजल है यूपी में? बोलिए 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 डॉक्टर साहब। प्रदीप जी, उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 9 सालों में केवल एक 69,000 शिक्षक की भर्ती हुई है और एक 60,000 की पुलिस की भर्ती हुई है। उसके अलावा कोई भी भर्ती नहीं हुई है। 60,000 और 69,000, इनके अलावा कोई भर्ती नहीं हुई है, कोई भी बड़ी भर्ती नहीं हुई है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर 18 परीक्षाएं के पेपर आउट हो चुके हैं। ये आपने भी कई बार मुद्दे को उठाया है, कई बार आप लोगों ने उठाया है। दूसरा बात कह रहा हूँ डेवलपमेंट की, अरे मुझे हंसी आती है इनकी। यार जब इतना ही डेवलपमेंट है तो सबसे पहले एक काम करिए, मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाजपा के लोगों 5 किलो राशन देना बंद कर दीजिए। क्यों? क्योंकि अगर इतना ही डेवलपमेंट कर दिया आपने इस प्रदेश को, इस देश को, तो शर्म आनी चाहिए आपको। 80 करोड़ लोगों को आप 5 किलो राशन पर डिपेंड कर रखा है। एक तरफ तो आप हवाई बातें करते हो कि 40,000 करोड़ का वो हो गया, 40 लाख करोड़ का हो गया, और दूसरी तरफ 5 किलो राशन पर डिपेंड कर रखा है लोगों के लिए। क्या ये दोहरी नीति है? यहीं से प्रदीप जी समझने की बात यहीं पर है। अगर ये वास्तव में ये कहते हैं कि हमने इतनी अर्थव्यवस्था को बड़ा कर दिया है, तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के अंदर ये सबसे पहले राशन को, फ्री राशन की बात को बंद करें, तब जाने ये वास्तव में, अब तब पता चलेगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। रोजगार के नाम पर आप चले जाइए। अभी एसएससी की परीक्षा हुई थी, किस तरीके से लोगों का, उत्तर प्रदेश में रहने वाले व्यक्तियों का मध्य प्रदेश में सेंटर डाल रहे हैं। मध्य प्रदेश में रहने वाले व्यक्ति का पेपर जम्मू कश्मीर में डाल रहे हैं। एक अनएम्प्लॉयड व्यक्ति बताइए 1,000 किलोमीटर पेपर देने जाएगा, 5-5 हजार रुपए एक पेपर पर खर्च करेगा। ये स्थिति इस देश में ला करके इन्होंने खड़ी कर दी है। और जब शिक्षक दिल्ली के अंदर एसएससी ऑफिस के लिए जाते हैं कोचिंग वाले, तो उनके साथ क्या व्यवहार किया जाता है आपको पता है कि बसों में ठूस करके उन्हें ले जाया जाता है। और मैंने आपके चैनल पर कई बार कहा है राजू जी, एज ए शिक्षक, एज ए टीचर, मैं पहली प्रियोरिटी देश में अगर किसी को देना चाहता हूं तो एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन ही है जो लोगों को अंधकार से बाहर निकालती है। एजुकेशन नहीं होती तो मैं आज यहाँ पर कुमार समाज का व्यक्ति आज डिबेट में नहीं बैठा होता। लेकिन प्रजापति साहब, if I have to go to Professor Malik, Dr. Malik, Professor प्रजापति साहब, लेकिन ये तो हर एक सरकार का रवैया रहा है। Let's be very clear. Apart from the first budget, पंडित जी की जो सरकार थी उसमें मौलाना आजाद साहब एजुकेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने लड़के लिया था। काफी सबसे बड़ा बजट जो था इन टर्म्स ऑफ रेशियो परसेंटेज बजट का, वो मौलाना आजाद ने लिया था एज एजुकेशन मिनिस्टर। उसके बाद वो नीचे ही आता रहा है सर, 9% था एज फार एज आई रिमेंबर। दैट इज बिकॉज राजकुमारी, अमृत कौर, सरदार पटेल, एवरीबडी, एंड इवन मोरारजी देसाई, एवरीबडी सपोर्टेड हिम। बट अनफॉर्चुनेटली एवरी गवर्नमेंट आफ्टर दैट हैज निग्लेक्टेड एजुकेशन। अविरल मलिक साहब, आपके खिलाफ काफी कुछ कहा गया है, बीजेपी के खिलाफ। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? प्लीज गो अहेड, फ्लोर इज योर्स, बोलिए। जी,
नहीं देखिए, जहाँ तक विषय एजुकेशन सिस्टम में परिवर्तन लाने का, अच्छी शिक्षा अच्छी चिकित्सा का, तो निश्चित रूप से हमारी सरकार प्रदेश स्तर पर भी कर रही है। जहाँ हमारी सरकार है कि सरकार भी निरंतर फैसले ले रही है, जो आवश्यक फैसले होते हैं वो लिए जाते हैं। और उसके साथ साथ जहाँ तक विषय है कास्टिज्म का, मैं सोचता हूँ कास्टिज्म किसी रूप में इम्पोर्टेंट नहीं है। जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, किस प्रकार से इन समस्याओं का समाधान किया जाए, इसकी हमने चिंता की। और रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य असल मुद्दों पर बात होनी चाहिए। तमाम सारी योजनाओं को चला के, आवास योजना, स्वच्छता अभियान और अन्य योजनाएं जन कल्याणकारी चला के मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से वो काम किए गए जो 60 साल में नहीं हो सके थे, चाहे पक्के मकान की बात हो, शौचालयों की बात हो, बेसिक सुविधाओं की बात हो, गांव-गांव में सड़कों की बात हो, अच्छे सर वो तो है, लेकिन एक सवाल का जवाब दे दें। एक तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन और परिवर्तन लाने की सर, बात एक हो, मेन क्वेश्चन एग्रीकल्चर सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करना, ये निश्चित रूप से हमने किया। वो आप भी इस चीज के सर कहाँ किया सर? अच्छा चलिए उसके बारे में कभी और डिबेट करेंगे, स्पेशली विद रिगार्ड टू द हेल्थ सेक्टर और द एजुकेशन कितना सेक्टर। खर्चा हो गया सर विल 12 सालों में? मैं निजाम साहब एक सेकंड, एक सवाल है सर जो बार बार आता है जब भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में बात होती है। मैं हर एक को ये बोलता हूं कि मैं काम कर चुका हूं वहां पे, तकरीबन 8 के 10 महीने में नानाजी देशमुख के साथ खुद था। गोंडा में गोइटर बेल्ट कहा जाता था उसको, आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से बच्चे मर रहे थे, हालत खराब थी सबकी। मैंने बहुत काम किया है वहां पे नानाजी देशमुख के साथ। वो भी पुराने आरएसएस के थे, उन्होंने फिर अपनी अलग से संस्था बनाई, लेकिन वो आरएसएस के अम्ब्रेला के तहत ही काम करते थे। मैंने देखा इनको काम करते हुए, और निस्वार्थ तरीके से कैसे काम किया जाता है मैंने बहुत सीखा है वहां पे। सो आई एम बीइंग वेरी क्लियर इन अपफ्रंट ऑफ इट। लेकिन एक चीज तो है ना सर, बार बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ ये सवाल आता है कि या तो आपके जितने भी 99% जितने भी अध्यक्ष हुए हैं वो सब ब्राह्मण हुए हैं, और एक जो है वो नॉन ब्राह्मण हुए हैं। यानी कौन? प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, रज्जू भैया जो ठाकुर थे, उसके अलावा बाकी सब ब्राह्मण हुए हैं। सर कोई भी ओबीसी नहीं मिला, कोई एससी नहीं मिला, कोई दलित नहीं मिला, कोई नहीं मिला। आप बताइए ना सर, सारे ब्राह्मण क्यों? बताएं। ये सवाल तो आएगा ही ना सर सामने। नहीं देखिए, जहां तक विषय है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, तो इन्हें ज्योतिपुंज पुस्तक है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा एक लिखित पुस्तक है ज्योतिपुंज। मैं सोचता हूँ उस पुस्तक को खरीदना चाहिए, उस पुस्तक का अध्ययन करना चाहिए। ज्योतिपुंज के माध्यम से इन्हें स्पष्ट होगा कि संघ का प्रचारक किस तरीके से साइकिल से जाके भी गांव गांव तक समाज को एक सूत्र में पिरोने का निस्वार्थ सेवा करता है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है एक तरीके से जातिवाद का, हम जातियों के आधार पर किसी रूप में तय नहीं करते, ये मैं समझता हूँ स्पष्ट है। तो फिर भी जितने भी अध्यक्ष हुए हैं उनमें सभी ब्राह्मण हैं और सिर्फ एक ठाकुर है। सर ये क्या है? आप मलिक साहब बनेंगे? आप मलिक साहब जाट हैं। अरे प्रजापति साहब एक मिनट, मलिक साहब जाट हैं, आपको बनाएंगे अध्यक्ष आरएसएस का? बोलिए सर अविरल मलिक साहब जी। आप बागपत से आते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विषय है, तो मैं सोचता हूँ उसमें पूर्णकालिक प्रचारक के रूप में यदि आप काम कर रहे हैं, पूर्णकालिक प्रचारक के रूप में संघ व्यवस्था के अनुरूप यदि आप काम करते हैं, संघ के प्रचारक के नाते यदि आप काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से एक व्यवस्था है, चाहे वो नगर प्रचारक हो, जिला प्रचारक हो, प्रांत प्रचारक हो, क्षेत्र प्रचारक हो, या फिर एक प्रकार से राष्ट्रीय समिति हो, तो उसके तहत निश्चित रूप से एक तरीके से पद आवंटित किए जाते हैं। और मैं सोचता हूँ पद नहीं दायित्व होते हैं। दायित्व इसलिए होते हैं, हम दायित्वों के माध्यम से दायित्वों का निर्वाह करते हुए समाज की सेवा करें, और समाज और राष्ट्र ही महत्वपूर्ण है। मैं सोचता हूँ डॉक्टर मलिक, हाल ही में पंचायती एक ऑर्डर था कि यादव और मुस्लिम के इलीगल कंस्ट्रक्शन को तोड़ा जाए। तुरंत योगी आदित्यनाथ जी ने सस्पेंड कर दिया उस अधिकारी को जो पंचायत के थे। मगर समाजवादी पार्टी का कहना है कि योगी जी का ऑर्डर है कि चुपके से करो, ये ओपनली कर रहे हैं इसलिए उनको सस्पेंड कर दिया। तो कितने सच्चाई है इसमें? क्या ये एक इंडिस्क्रीट ऑर्डर है कि साइलेंटली आप जितने यादव और मुसलमान हैं उनके इलीगल कंस्ट्रक्शन को बुलडोजर चलाओ? ये एक एक्सेप्शन था, ये खुल गया, ओपनली कह दिया, इसलिए योगी जी ने इनको सस्पेंड कर दिया। कितने सच्चाई है उसमें? जी देखिए, जहां तक यादव का विषय है, यादव भी हमारा, मुसलमान भी हमारा। मुसलमानों के हित में हमने उतना काम किया जितना कि समाजवादी पार्टी ने नहीं किया। सपा की सरकार के दौरान मुसलमान क्या करते थे वो भी सबको मालूम है, कभी शिक्षा नहीं दी। और एक तरीके से 4-5 बजे के बाद शाम के समय में ये प्रजापति जी बैठे हैं, इन्हें मालूम होगा अगर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो किस तरीके से समाज में एक खौफ का माहौल होता था। बहन बेटियां बाहर नहीं निकल सकती थी, कट्टाधारी लोग मोटरसाइकिलों पर घूमा करते थे, पश्चिम का यह हाल था।
बाकी तो और पूरे उत्तर प्रदेश की पूरब की बात कर ली जाए, मध्य की बात कर ली जाए, यही हल था। और उसके साथ साथ जहां तक विषय हमारी पार्टी का है, तो हमारी पार्टी किसी रूप में जाति के आधार पर ना वोट मांगती है, ना जाति के आधार पर किसी के विरुद्ध कार्रवाई करती है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय मुसलमानों का, मुसलमान को अच्छी शिक्षा मिले, ये हम सुनिश्चित करने का काम कल भी कर रहे थे, भविष्य में भी करेंगे। और मुसलमान को अच्छी शिक्षा ना देने का काम कांग्रेस सपा दोनों ने किया, और बल्कि उन्हें बीजेपी से डराने का काम किया कि अगर बीजेपी आ गई तो उन्हें खा जाएगी। जी, दुरुस्त बात। मैं समझता हूँ ऐसा कुछ नहीं है, उनके हित में जितना काम हमने किया, क्योंकि वो पहले अफजल से मलिक जी हुए थे। 543 लोकसभा में एक आध प्रजापति लड़ाने का काम करेंगे नहीं करेंगे? क्या प्रजापति करेंगे, हिंदू नहीं करेंगे। है? 543 लोकसभा है पूरे भारत के अंदर, एक टिकट आपकी पार्टी नहीं देती, एक टिकट। उत्तर देखिए, प्रदेश के अंदर 80 लोकसभा है, एक प्रजापति को टिकट नहीं देने का काम करती। सर, आगे दे दीजिए सर भैया, कुमार समाज तो वो तो- अपना ही है ना, कुमार समाज को देना चाहिए ना। बोलिए देखिए, कई बोलिए सारे सर। मैं उदाहरण देता, लेकिन उस उदाहरण से बढ़िया मैं केवल सीधा सीधा कहना चाहूंगा प्रजापति जी को, अगर प्रजापति जी बीजेपी की चिंता कर रहे हैं, प्रजापति समाज की बात कर रहे हैं, तो निश्चित ही इनका अधिकार है प्रजापति समाज की आवाज उठाने का, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे भी कोई समस्या पर्टिकुलर नहीं है, लेकिन जहां तक विषय हमारी पार्टी का, हमारी पार्टी जाति के आधार पर नहीं, योग्यता के आधार पर टिकट देती है। और अगर योग्यता इनमें होगी, मतलब आप प्रजापति मेरे जी में होगी, 5 लाख, मेरे 5 करोड़ लोगों को गाली दे रहे हैं, इसका मतलब आपने ये बिल्कुल, कह मैं करके उसी मुद्दे पे आ रहा हूं। योग्यता आप के में- आधार आप पर में- देती है, इसका मतलब मेरा 5 करोड़ लोगों में कोई एक भी व्यक्ति योग्य नहीं है। नहीं 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 अफजल मलिक जी, नहीं अफजल मलिक जी, बिल्कुल मैं ऑब्जेक्ट करूंगा। 5 करोड़ लोगों में क्या एक भी प्रजापति योग्य नहीं है आपके अनुसार? इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि योग्यता के आधार पर देती है? क्या पूरे भारत के अंदर 5 करोड़ लोग रहते हैं प्रजापति समाज के? क्या 5 करोड़ लोगों में एक भी योग्य नहीं है पूरे भारत में? ये क्या तरीका हुआ आपका कहने का कि योग्यता के आधार पर देती है? 2014, 2019, 2024 3 चुनाव में आपकी सरकार बन चुकी, 543 सीटें हैं, 543 सीटों में आपको एक प्रजापति योग्य नहीं मिला। इसका मतलब आप पूरे 5 करोड़ लोगों को अयोग्य समझते हैं प्रजापति समाज के? क्या 5 करोड़ लोगों में एक व्यक्ति नहीं मिला? आप इस चैनल के माध्यम से या तो माफी मांगिए, 5 करोड़ लोगों के साथ आपने ये गलत कहा है। क्या मैं कह रहा हूँ 5 करोड़ लोगों में आपने ही कहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, आपने कहा है कि योग्यता के आधार पर टिकट देती है। तो क्या 2014 में भी बोला नहीं हूँ, मैं तब से नहीं बोला हूँ। प्रजापति समाज का सम्मान कल भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं, भविष्य में भी करते रहेंगे। और प्रजापति समाज की जहां तक बात है, प्रजापति समाज का आपने अपमान किया, कितनी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रजापति समाज को दिया, अतीक अहमद मुख्तार अंसारी को बढ़ावा दिया, क्या किया आपने प्रजापति समाज के लिए? अगर मैं प्रजापति समाज को समाजवादी पार्टी ने हमेशा सम्मान देने का काम किया। अतीक पर मत जाइए, अतीक से मतलब नहीं है हमें, मुझे अतीक से कोई मतलब नहीं है, मुझे अतीक से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर बात प्रजापति समाज की हो रही थी, आप अतीक पर क्यों पहुंच गए? आप अतीक पर क्यों पहुंच गए? आप केवल हिंदू और मुस्लिम के नजरिए से देखते हैं, मैं हिंदू के नजरिए से देख रहा हूँ। 543 सीटों में आपने ये बात कही कि एक योग्यता के आधार पर देती है, तो आप ये बताइए क्या आपको एक प्रजापति योग्य व्यक्ति नहीं मिला पूरे भारत के अंदर? ये तरीका आप बताइए 543 सीटों पर एक योग्य व्यक्ति नहीं मिला। आप 750 जिला अध्यक्ष हैं, 750 में क्या आपको एक जिला अध्यक्ष बनाने के लिए योग्य व्यक्ति नहीं मिल रहा है? 28 प्रदेश है, क्या आपको एक योग्य व्यक्ति नहीं मिल रहा है कि आप उसको बनाए? बोल लीजिए, ऐसे डिबेट नहीं होती है। देखिए एक सेकंड सर, जेंटलमैन मे आई इंटरवीन सर, मे आई इंटरवीन। साहब से पूछिए, सुब्रमण्यम स्वामी जी जो आजकल भारत के प्रधानमंत्री के लिए स्वर्णाक्षर शब्दों में जो बातें बयान कर रहे हैं, थोड़ा उस पर भी कभी चर्चा हो जाए। सर जो वो अरे निजाम साहब, लेकिन ये बीच में बोल गए। निजाम साहब, प्रजापति समाज पे ही आ रहा हूँ, मैं तो चाह रहा हूँ चर्चा करूं प्रजापति समाज पे, लेकिन ये चर्चा होना नहीं दे रहा। लेकिन एक समस्या ये है सेकंड सर, एक सेकंड मलिक साहब एक मिनट सरकार, देखिए मैं एक बात कहता हूँ निजाम साहब, एक सब्जेक्ट खत्म कर लें, ये प्रजापति समाज का सब्जेक्ट जरा खत्म कर लें सर प्लीज, उसके बाद आते हैं। प्रोफेसर प्रजापति, आपसे एक सवाल पूछा गया है सर, मैं चाहूंगा आप उसका जवाब दें। सर, उत्तर प्रदेश में हाल ही में अखिलेश यादव जी की सरकार थी, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कितनी स्कीम्स वो लेकर के आए प्रजापति समाज के लिए, कितने प्रजापति समाज के लोगों को लोकसभा की टिकट समाजवादी पार्टी ने दी, कितने प्रजापति समाज के लोगों को समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी ने राज्यसभा में भेजा? बोलिए सर प्लीज। बहुत अच्छा राजीव जी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, निश्चित रूप से बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया।
गायत्री राजीव जी, मैं प्रजापति बताएंगे आपको बता देना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी ही एक पार्टी है जिसने प्रजापति को सबसे ज्यादा सम्मान देने का काम खाली किया है। मैं गायत्री केवल प्रजापति। ऐसे ये वर्ड नहीं बोलूंगा, आगे पूरा तथ्य बताऊंगा। बोलिए। पूरे तथ्य सुन लीजिए अब्दुल मलिक जी, पूरे तथ्य सुन लीजिए, पूरे तथ्य सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश के अंदर पहला एमएलसी बनाने का काम अगर किसी राजनीतिक दल ने किया तो समाजवादी पार्टी ने किया। पहला दयाराम प्रजापति, पहला एक क्वेश्चन, पहला। दूसरा, ये लगातार 2 बार एमएलसी बनाने का काम अगर किसी पार्टी ने किया तो समाजवादी पार्टी ने। सबसे बड़ा आज तक का कैबिनेट मंत्री मंत्रालय पद और खनन मंत्रालय जैसा पद गायत्री प्रजापति। देने का काम अगर किसी ने किया तो समाजवादी पार्टी ने किया। जी नहीं, नाम उत्तर भी बोल प्रदेश दो। के अनुसूचित, अब सुन लीजिए अब्दुल जी, सुन लीजिए, अनुसूचित जाति का मुद्दा जिसको मैं कई बार आपके माध्यम से उठा चुका हूं, पूरे भारत में अगर किसी प्रदेश में अनुसूचित जाति का मुद्दा चलता है तो वो केवल और केवल समाजवादी पार्टी की बदौलत ही चलता है, क्योंकि माननीय जो नेताजी थे मुलायम सिंह यादव, उन्होंने कई बार 3 बार अनुसूचित जाति में समाज को लाने का प्रयास किया, हालांकि सफलता उन्हें नहीं मिल पाई, लेकिन लाने का प्रयास किया, इसीलिए मुद्दा आज राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है। वरना उत्तर प्रदेश के अलावा किसी प्रदेश में, किसी भी प्रदेश में ये मुद्दा नहीं है। रही बात दूसरा जिला अध्यक्ष की, आज तक के एक भी जिला अध्यक्ष नहीं बनाया उत्तर प्रदेश में। 2 बार जिला अध्यक्ष बनाने का काम समाजवादी पार्टी ने हमीरपुर से और बांदा से करने का काम किया है। रही बात टिकट की, हाँ टिकट की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि समाजवादी पार्टी केवल अब तक 40, 50 या 60 टिकट पर ही लड़ती है, ठीक है ना। लेकिन दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी 543 सीटों पर लड़ती है, 543 नंबर को, फैक्ट ऑफ नंबर देखिए इसीलिए। लेकिन हमेशा समाजवादी पार्टी ने प्रजापति समाज को, और रही विधानसभा की 2022 के चुनाव में 3 टिकट समाजवादी पार्टी ने देने का काम किया, 3 टिकट देने का काम किया, जो कि नंबर से के हिसाब से उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है, सबसे Right. ज्यादा है। So that's wonderful. और मैं बता रहा हूँ, जब माननीय नेताजी मुलायम सिंह जी थे तो उन्होंने प्रजापति समाज को पट्टा देने का काम किया था, मिट्टी के बर्तन बनाने जो का वापस काम ले लिया किया था। गया है। आज भैया, तक आप भी उत्तर योग्य प्रदेश होगा, के आपको अंदर टिकट केवल चाहिए, आ समाजवादी जाओ। पार्टी है आपको अगर टिकट जिसने चाहिए, उत्तर हमारी प्रदेश पार्टी के में आ जाओ, आप अंदर भी योग्य पट्टा हो। देने का काम किया। आज तक किसी भी राजनीतिक दल ने आप नहीं लेकिन किया। अविरल मलिक ये साहब, काम है, आप मैंने जो योग्य हो, आपको आपको बता टिकट दी, जो मिल जाएगा केवल बल्ले। केवल समाजवादी पार्टी ने लेकिन किया। अविरल मलिक अब साहब, ये भाजपा के जो प्रवक्ता लैंड की बात कर रहे हैं ना, जो पॉटर्स को दिया गया, स्पेशली इन्होंने प्रजापति समाज के लिए क्या किया, स्पेशली प्रजापति समाज के लिए Right, इन्होंने sir. क्या किया, ये सीधे सीधा उत्तर दे दें। Right, ये one इधर second. उधर की बात ना Sir, करके, आप ही की बात कर रहा मौके पे हूं। सीधे ये कह दें कि हाँ इनकी पार्टी ने प्रजापति समाज के लिए ये काम किया। प्रजापति सर, प्रजापति समाज का जहां तक प्रश्न है, उनको जो पट्टा दिया गया था जमीन का, क्योंकि क्या होता है सर, आप जानते ही होंगे अविरल मलिक साहब, आप खुद उत्तर प्रदेश के देहात से भी हैं, आपको एक एक चीज मालूम है, मुझे आपको समझाने की जरूरत तो है नहीं। जो घड़ा बनाने की प्रक्रिया, सुराही बनाने की प्रक्रिया, जो कुम्हार का काम होता है, उसके लिए जमीन की जरूरत होती है। तो वो जमीन का पट्टा दिया गया था मुलायम सिंह यादव साहब के वक्त, और उसको वापस ले लिया गया सर, अभी नहीं दिया गया, और जो उनके पास था वो भी वापस ले लिया गया है। हाँ राजीव जी बहुत अच्छी बात पूछ कर दी भैया, आपने। अगर आपको इनकी- चुनाव लड़ना है, टिकट सपा वाले नहीं दे रहे तो आ जाओ, बीजेपी में आ जाओ, यहाँ आपकी योग्यता Open invitation, sir. जाएगा, इतना मैं कह सकता हूँ आपके लिए। इन्होंने छीनने का काम किया है उस पट्टों को। मालूम है सर, मैं तभी तो बोल रहा हूँ। उधर होने अरे दो। सर, तभी पूछ रहा हूँ, क्या है प्रॉब्लम, क्या है? नहीं अविरल मलिक साहब, मैं एक चीज आपके सामने मैं बात करता हूँ। आपने जो इनको अभी बोला ना बीजेपी में आ जाइए, बीजेपी जेन्युइनली नीड समबडी लाइक राकेश प्रजापति। शैल आई टेल यू व्हाई? इसमें सर लोगों का दोष नहीं है, प्रजापति समाज अब जाकर के ऑर्गेनाइज हुआ है बहुत अच्छे तरीके से। हर पॉलिटिकल पार्टी में ये होता है सर, कांग्रेस में भी ये होता है। अब हमारे मित्र निजामुद्दीन रहीम साहब मेरे बहुत पुराने मित्र हैं सर, ये 30 साल से जानता हूं मैं इनको। मेरी समझ में इनको अभी तक एमएलए होना चाहिए था, एटलीस्ट कांग्रेस का मंत्री होना चाहिए था, इनको अभी तक नहीं बनाया गया। सर किसी को आगे बात रखने की आवश्यकता है, तो आपने जो अभी इनविटेशन दिया है ना राकेश प्रजापति जी को, उसको परसू कीजिए, इनको लाइए भारतीय जनता पार्टी में, ही विल बी एन एसेट फॉर यू। लेट मी टेल यू दिस, कन्विंस कीजिए इनको। अविरल मलिक साहब, जिस तरीके से आपने, और ये बात मुझे कहनी पड़ेगी दोबारा, मुसलमानों में जो क्या मुसलमानों में अशराफ हैं, अजलाफ हैं, मुसलमानों में जिस प्रकार लोअर कास्ट मुस्लिम्स, ओबीसी मुस्लिम्स को अपनी तरफ लाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, इस बार देखना वो भी रंग लाएगा सर, इट विल बेयर फ्रूट।
हो सकता है निजामुद्दीन रहीम साहब मेरी बात से सहमत ना हो, आप बोले निजाम साहब, जो पासबंदा मुसलमान है सर बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, बोल रहा मैं आपको। पासवानदा और गैस पासवानदा का ये विषय नहीं है, क्योंकि मुसलमानों से बीजेपी को सख्त नफरत है। नहीं है भी सर, हमारे मित्र, कहाँ सर, ठीक है सर। अभी मैं इनके मलिक साहब को मैं सुन रहा था, मलिक साहब ने जितनी बढ़िया तरीके से मोदी जी की तारीफ में मुसलमानों को आरएसएस और इससे, आप महाराष्ट्र की हिस्ट्री अगर इनको बता देंगे मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, देश में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, तो इस शर्म से डूब मरेंगे। और यही वजह है कि इनके चचा जो सत्यपाल मलिक थे वो सच्चाई इनके सामने खोल कर रख दिए थे। लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि एक बार आदमी बीजेपी में चला जाता है तो उसका जमीर मुर्दा हो जाता है, वो उसका जमीर मुर्दा हो जाता है, फिर वो बिल्कुल उसी तरह की बात करता है जैसे बीजेपी बात करती है। मैंने अभी एक प्रश्न किया कि इनके बहुत बड़े नेता हैं जो सुब्रमण्यम स्वामी जी थे अभी पिछले नहीं सर, आज भी नेता हैं, ये इनकार थोड़ी कर सकते हैं। आज भी जितने केसेस वगैरह सब बीजेपी के साथ के फेवर में चलाते हैं, मुझे जाना है 8:30। राइट, थैंक यू वेरी मच प्रजापति साहब, गॉड ब्लेस यू। हाँ, पढ़ा लिखा एक ही है, वो है सुब्रमण्यम स्वामी, उससे ज्यादा पढ़ा कोई नहीं है इनके यहाँ। जितने इनके ऑल मिनिस्टर्स की बात कर रहा हूँ, उसके किसी पास के आसपास भी नहीं टिकते जितना वो पढ़ा लिखा है, और जितना इनके पार्टियों को और रिसर्च को दूसरों को उनके ऊपर विश्वास रहा है, कभी किसी में नहीं रहा। आजकल पिछले 15 दिनों में वो जो बातें कर रहे हैं, क्या मलिक साहब उसमें से कुछ चीजों का जवाब देना पसंद करेंगे क्या? जी मलिक साहब कुछ बोलना चाहेंगे सर आप? मलिक साहब जी बोलिए। नहीं, देखिए जहां तक विषय है कौन क्या राय रख रहे हैं, कौन क्या राय नहीं रख रहे हैं, मैं समझता हूँ डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी क्या राय रख रहे हैं, वो उन्होंने क्या क्या राय रखी है। अगर इस पर पर्टिकुलरली डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी पर चर्चा हो जाएगी तो मैं समझता हूँ सबसे पहले मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ कांग्रेस वाले सबसे पहले भागेंगे, क्योंकि अगर डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी साहब की शुरू से बात कर ली जाए तो शुरू से अगर बात की जाएगी तो गांधी परिवार पे एलिगेशंस, गांधी परिवार के संबंध में कही गई बातें और एक तरीके से लगाए गए मुकदमे और उसके बाद रखे गए फैक्ट्स, अगर सारों पे क्रॉस एग्जामिनेशन की जाएगी, विस्तृत चर्चा की जाएगी, तो मैं सोचता हूँ उससे इन्हें दिक्कत होगी। और उसके साथ साथ जहाँ तक विषय है डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी साहब का, तो क्या कह रहे हैं, मैं सोचता हूँ एक तरीके से वो उन्हें लीगल नॉलेज भी है, पॉलिटिकल नॉलेज भी है, वरिष्ठ राजनेता है, और उसके साथ साथ जहाँ तक विषय है किसी प्रकार की टिप्पणी का, तो क्या कह रहे हैं, सबको राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच के आधार पे वो अगर वो कहना चाहते हैं किसी चीज को, उन्हें भी पूरा अधिकार है। सर वो नेशनल हेराल्ड का केस अभी तो चल रहा है, वो सुब्रमण्यम स्वामी की बदौलत चल रहा है, उन्होंने फाइल किया था सबसे पहले। तो निजामुद्दीन जी क्या भागने वाले हो? और फिर डॉक्टर राहुल गांधी जी को, ये कभी भागती नहीं है सर, राहुल गांधी जी कभी को गलत काम किया तो उस पर कार्रवाई हुई। आदमी सर राहुल गांधी जी के बारे में उन्होंने ये कहा, पूरा विषय सबको पता है कि ये बोगस विषय है, पूरा देश जानता है, बोगस है और ये प्रॉफिट लॉस में था ही नहीं, उस पर केस करेक्ट। और तो वहाँ डॉक्टर स्वामी गलत है और यहाँ डॉक्टर स्वामी राइट है कि ईडी के जब बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं तो डॉक्टर स्वामी राइट है, कांग्रेस को कोर्ट में लेके गए तो डॉक्टर केसेस बोगस निकले। तो सर इंग्लैंड में और हार्वर्ड में सुब्रमण्यम स्वामी साहब का ये कहना है, मेरा कहना नहीं है, मैं मानता हूं ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने एक बार नहीं 110 बार से ज्यादा ये बोला है कि राहुल गांधी ने अपना नाम राहुल विंची बताया, ऐसा सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने। अब ये मैंने नहीं बोला, अभी तक कभी नहीं तो सर आप बताइए सर कि राहुल गांधी जी के ज्यादा सुब्रमण्यम स्वामी को आप कहां सुनेंगे और कहां नहीं सुनेंगे, ये तय कर लीजिए। नहीं वो सवाल नहीं है, सवाल ये है कि आज टॉप की लिस्ट में बीजेपी की लीडरशिप पर जितने मुकदमा चलते हैं, लीगल एक्शंस हुए हैं, वो सारे के सारे के जिम्मेदार जो है खुद स्वयं जो है सुब्रमण्यम स्वामी है। सुब्रमण्यम स्वामी अभी जो चीजें कह रहे हैं, अभी पिछले हफ्ते उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा बदमाश और निकम्मा मोदी है, ये उनके अपने शब्द हैं, मेरे अपने कोई शब्द नहीं, मैं अपने प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्द प्रयोग नहीं करता। लेकिन वो अंदर की बात है सर, बड़े अच्छे मित्र हैं, सभी लोग आपस में सेटल कर लेंगे सर, ऐसी क्या बात है। सुब्रमण्यम स्वामी जी अटल जी के बारे में क्या क्या बोलते थे, अब छोड़ो ना यार। अरे तो क्या है ये यात्रा किस प्रकार से होगा? राहुल गांधी जी का यात्रा में बात करते हैं, वोटर अधिकार यात्रा होगा। राहुल गांधी को पूरा बिहार इंतजार कर रहा है, वोटर यात्रा शुरू होगी, देश के मीडिया में हलचल मचेगी और गोदी मीडिया उनकी बुराइयां तलाशने में लगेगा, और जो देश का सही नागरिक है कल वो राहुल गांधी के साथ अपनी वोट बचाने के लिए कल बिहार में आंदोलन करेगा,
जो उसको इस देश के संविधान ने डॉक्टर कब शुरू बाबा हो रही है साहब यात्रा? अम्बेडकर के संविधान और देश के संविधान ने दिया और है, कब तक चलेगी? इसको बचाने के लिए कल राहुल गांधी अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं बिहार में। यस और तो आप चलना चाहें तो आप अविरल मलिक दोस्त साहब, करते हाँ तो आई वी वुड लव टू गो। अविरल मलिक साहब, ये देखा गया कि जब भी कोई यात्रा करता है ना कोई भी पॉलिटिशियन, वो मतलब उसका काफी कल्याण हो जाता है। तो आपको लगता है कि इस यात्रा से, राहुल जी की यात्रा है वोटर अधिकार यात्रा, पहले इसका नाम रखा गया था वोटर चोरी यात्रा, फिर नाम रखा गया था वोटर बचाओ यात्रा, अब रखा गया है वोटर अधिकार यात्रा, तो आपको लगता है कि इससे कोई फर्क पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी को बिहार में चलते चलते? नहीं देखिए, जहां तक विषय राहुल गांधी जी का या प्रियंका गांधी वाड्रा जी का या अन्य नेताओं का कांग्रेस पार्टी के, मैं समझता हूं जहां तक विषय मुद्दा आधारित राजनीति का, ये मुद्दे के आधार पर राजनीति नहीं कर रहे हैं, तथ्यों के आधार पर राजनीति नहीं कर रहे हैं। अगर मुद्दा आधारित राजनीति की बात कर ली जाए तो मैं समझता हूं इन्होंने एक मुद्दा बनाया था ईवीएम का मुद्दा, उसके बाद जब वो ईवीएम का मुद्दा समाप्त हो गया तो दूसरा इन्होंने मुद्दा पकड़ा एसआईआर का, उसके बाद उसकी फुल फॉर्म नई गढ़ी, स्टीलिंग इंडियन राइट्स वगैरह करके इन्होंने प्ले कार्ड्स अपने दिखाए और ट्वीट खेलने का काम किया। मैं समझता हूं अगर एक मुद्दे पे चला जाए जब इन्हें कुछ लाभ हो सकता है, अगर उस मुद्दे में कोई तथ्य हो तब इन्हें कुछ लाभ हो सकता है, जब कोई तथ्य ही नहीं है, कोई एविडेंस ही नहीं है, कोई लॉजिक ही नहीं है। अब अगर ये बात कर रहे हैं ईवीएम की, तो मैं समझता हूँ ईवीएम पे इन्हें चर्चा कर लेनी चाहिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब इस देश के प्रधानमंत्री ईवीएम के माध्यम से रहे, और अगर ईवीएम की बात कर ली जाए तो इस चीज को स्पष्ट जान लेना चाहिए। एक और बात करते हैं सरकारी मशीनरी की दुरुपयोग का और गोदी मीडिया का एक प्रकार से आरोप लगाने का काम करते हैं। तो मैं समझता हूँ वर्ष 2013 में या 2014 से पहले प्रधानमंत्री मोदी जी तो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और अगर गुजरात के मुख्यमंत्री जिस समय थे उस समय उन्होंने पर्चा दाखिल किया था वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान। एक तरीके से वो काशी गए थे, वाराणसी गए थे एक तरीके से चुनाव लड़ने के लिए। तो उस दौर की अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे, समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट इशू होता है, पूरा पुलिस प्रशासन समाजवादी पार्टी के हाथ में था, एक तरीके से पूरी सरकारी मशीनरी समाजवादी पार्टी के हाथ में थी। और अगर केंद्र सरकार की बात कर ली जाए, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब की केंद्र में सरकार थी, और उसके साथ साथ ईवीएम से चुनाव हुए, और मैं समझता हूँ सारी सरकारी मशीनरी केंद्र की मनमोहन सिंह साहब के हाथ में अर्थात गांधी परिवार के हाथ में थी, और सैफई परिवार और सपा के हाथ में उत्तर प्रदेश की सारी सरकारी मशीनरी थी। वो भी सबने देखा, और उस दौर में किस प्रकार का बदतमीजी का व्यवहार हमारी स्मृति ईरानी जी के साथ किया था, जो अमेठी से लोकसभा कैंडिडेट थी, एक दरोगा और कुछ पुलिस वाले, वो आज भी वीडियो मौजूद है, और प्रियंका गांधी वाड्रा की पीए भी उस वीडियो में मौजूद है। तो दरोगा और पुलिस वाले भी किस प्रकार की बदतमीजी और अपमानजनक एक तरीके से व्यवहार कर रहे थे कैंडिडेट्स के साथ, तो मैं समझता हूँ वो भी सबने देखा, और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग भी सबने देखा। पुलिस प्रशासन, एसपी और डीएम और पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार से सपा के हाथ में था। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी सब अखिलेश यादव जी को रिपोर्ट करते थे, और केंद्र का पूरा प्रशासन इनके हाथ में था। बावजूद इसके सारी परिस्थितियां विपरीत होने के बावजूद हमारी केंद्र में सरकार बनी, मोदी जी जीते और पूर्ण बहुमत की हमारी सरकार आई। तो अब इन्हें ये बता देना चाहिए ये कौन सा ईवीएम का आरोप लगाते हैं, जब तो ईवीएम भी इनके हाथ में सर अभी जो सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट गलत जब जुडिशरी भी इनके हाथ में कोर्ट में तो आखिर आरोप किस पे लगाते हैं? एसआईआर के ऊपर किस पे आरोप लगा रहे हैं आप? वोटर पे आरोप लगा रहे हैं या अपने आप पे आरोप लगा रहे हैं? सर इतना बढ़िया झूठ बोलने की ट्रेनिंग सिर्फ आरएसएस और बीजेपी के लोगों के पास ही है। इसका मतलब क्या देश के संविधान और सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा ही नहीं है? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केवल यही कहा, आपके सरकार है ना, सुप्रीम कोर्ट डिबेट करने का मैं समझता हूं कि नहीं। लेकिन एक चीज तो है ना सर, निजाम साहब, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा आपको पता है ना? 65 लाख वोटर्स की लिस्ट दी जाए और वजह बताई जाए। आपके माध्यम से जो करना था आपने किया, जो करना था कर लिया उतने, और बावजूद अब आगे क्या होगा सर वो देखते हैं ना। उसके बावजूद आप आरोप लगा रहे हो। डालना इनको, कल से सारी वोटर लिस्ट प्रकाशित करनी है। अच्छा मतलब आप कह रहे हो आप दूध के धुले थे, आप कह रहे हो आप दूध के बिल्कुल धुले थे। हमने तो आपकी सरकार दूध की धुली सरकार थी, और अगर हमने फेयर इलेक्शन नहीं कराया होता सर ये लंबा चला जाएगा। लेकिन आप उमर अब्दुल्ला राजन्ना जिस प्रकार से राहुल गांधी जी के चीजों को ना के समान उमर अब्दुल्ला ने बोला, राजन्ना आपके ही मंत्री थे, आपने इस्तीफा दिलाया, तो क्या है निजामुद्दीन जी, कहीं ना कहीं आपको भी सोचना पड़ेगा क्या रास्ता सही चल रहा है। और वो प्रिया पाल है, क्या नाम है उनका, ऐसा कुछ वो तो समाजवादी पार्टी की जो है, उनको भी आपने बाहर कर दिया, क्योंकि वो तारीफ की उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी की कि मेरे पति का जिसने कत्ल किया
उसका बदला दिलवाया योगी आदित्यनाथ जी ने मुझसे। अभी तक तो मेरी पार्टी में तो किसी ने कुछ नहीं बोला, जरा सी तारीफ करती योगी आदित्यनाथ की, उसको भी बाहर कर दिया। लेकिन ऑल द वेरी बेस्ट टू यू सर, वी विल वॉच विद ग्रेट इंटरेस्ट एंड होपफुली वी शैल बी एबल टू ज्वाइन। हम चाहते हैं कि राहुल गांधी जी लोगों के बीच में जाएं, फर्स्ट क्लास एक लोकतंत्र में मुकाबला होना चाहिए। कांग्रेस शुड ऑल्सो स्ट्रेंथन इटसेल्फ, और जैसा कि यहाँ पर कहा गया है, मुद्दों के ऊपर बात होनी चाहिए, पर्सनालिटीज के ऊपर नहीं होनी चाहिए, जहां तक मैं समझता हूँ। Anyway, gentlemen, thank you very much for joining us. Great pleasure talking to you. जन्माष्टमी की आपको बहुत 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 शुभकामनाएं। धन्यवाद, आपको बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे 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 राधे, जय श्री कृष्ण। निजाम साहब, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत बधाई निजाम साहब, थैंक यू वेरी मच। निजाम साहब, आपका इंतजार हो रहा है, अभी तक ऑफिस में नहीं आया। चलिए, थैंक यू, बाय बाय। Well, it turned kind of heated, but then it was still all right. It was still all right. Controllable. You could control it. I didn't. I think they controlled themselves. That was it. Because then they suddenly realized that they would not be heard. And the point is this: at the end of the day, those 65 lakh or 63, or is it 67? I'm not sure. 65 lakhs. I think are the names that have to be presented in front of the Supreme Court with reasons as to why is it that you have deleted them from the voters list. And I'm sure the election commission would have it on hand. After all, And they've they said will give it. I mean, what is the harm in not giving? They have should to give it. The Supreme Court. And if at all further they find that some people who are alive and they have been declared dead, you can still rectify. और दूसरी बात क्या है प्रदीप जी, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं ये मान करके चलता हूँ कि बार बार मोदी जी जो भी कहते हैं उसके अंदर आप फॉल्ट निकालते हैं। आप कहते हैं ये झूठ बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं। इट्स अ बिग कंट्री। आप लोगों को मालूम नहीं है 156 करोड़ का देश है यार। भले 143 करोड़ ऑफिशियली बोलते हो, 143 करोड़ भी बहुत ज्यादा होते हैं सर। 1.4 बिलियन पीपल, डू यू नो हाउ बिग दैट इज? उसमें से धीरे 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 करके 1 मिलियन आफ्टर 1 मिलियन आफ्टर 1 मिलियन आफ्टर 1 मिलियन, बाय द टाइम यू रीच 100 मिलियन इट विल बी 10 years। मैं ये बोल रहा हूं कि भाई विजन तो है, अनाउंसमेंट तो कर रहे हैं ना, उसके ऊपर आगे जाकर के लोगों ने काम भी किया है। मेरा ये कहना है साहब, डॉक्टर मनमोहन सिंह के आखिर के 3 साल में कोई काम नहीं हो रहा था। लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, आई एम ओनली लुकिंग एट से डिफेंस एक्विजिशंस। ए.के. एंटनी साहब डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे सर, सारी फाइलें उन्होंने लॉक करके रख दी। Not one single acquisition took place in the last 3 or 4 years of Dr. Manmohan Singh's government. The policy paralysis, which they say affected Yes. Manmohan Singh too, MMS too, that was absolute. The people could feel it, and that's why they gave a massive mandate to Prime Minister Modi right now in 2013. और अभी मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को अपना रवैया जरा बदलना चाहिए। They should come up with a new plan. Very frankly, that time बदल चुका है। This is the time of artificial intelligence, sir. आजकल तो अब चैट जीपीटी भी बहुत पुराना हो गया सर, और आप तो पोस्ट कार्ड के जमाने में जी रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? और आप चैट जीपीटी से पूछेंगे, they'll give you an entire election plan which is suitable for the Congress. They don't have to spend endlessly for strategists, and आप चैट जीपीटी में बोलेंगे what is the plan for Congress for this election, they will come out with the entire plan. इतना सस्ता हो गया। I mean, working has become so easy now. और आपको अगर लगता है कि राहुल गांधी जी भीगते हुए, झंडारोहण करते हुए, उसकी वजह से वो मोदी से जीत जाएंगे, well you got another thing coming. Can we have that footage? Can we see that footage again please? अरे लोगों ने तो बड़ी क्लोजअप में दिखाई है, आप तो इतना दूर दिखा रहे हैं। देखिए वो राहुल गांधी जी भीग रहे हैं। मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ पे क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के सारे सपोर्टर हैं, इसलिए जान करके आरएसएस भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर हैं, इसलिए वो ज्यादातर राहुल गांधी को दिखाते नहीं है। तो ये राहुल गांधी जी भीग रहे हैं 24 अक्बर रोड पे। तो मेरा ये कहना है कि कांग्रेस को बड़ी उम्मीद है कि क्योंकि दिस वीडियो वेंट वायरल, हर जगह पर हर एक कोई इसी के बारे में बात कर रहा था, इसका मतलब ये नहीं कि आपको वोट पड़ेंगे साहब। आपका लीडर अगर बारिश में भीग रहा है तो क्या हो गया यार? अरे तू भीग रहा तो हमें भिगोएगा क्या? मोदी जी कहते हैं ये खुद भीग रहा है, आपको भी भिगोएगा। जहां तक हमारा सवाल है, हम बारिश से आपको बचाने के लिए आपके घर पे छत दे रहे हैं, आपको घर दे रहे हैं, आपके सर के ऊपर छत दे रहे हैं। नाउ यू डिसाइड who going to vote for. Let's be very clear. So all this is fine. These gimmicks used to work at one time. They don't work anymore. Anyway, that's my opinion. And but it never worked for Sharad Pawar Sahab this time. it's not going to work. Yeah, Sharad Pawar Sahab was also standing in the rain. Yes. It And effectively got wiped out. All I'm saying is, at the end of the day,
You have to know who's the leader for you. Mr. Rahul Gandhi has to come out with an alternative to Mr. Modi. कि मिस्टर मोदी साहब की ये स्कीम है, हमारी ये स्कीम है, इनकी ये इकोनॉमिक पॉलिसी है, हमारी ये इकोनॉमिक पॉलिसी है। इस तरीके से हम लोग लोगों को नौकरियां देंगे, इस तरीके से हम लोग भारत की इकोनॉमी को बढ़ाएंगे, इस तरीके से हम लोग देश की सुरक्षा में इजाफा करेंगे। ये सब चीजें they have to come out with that. They have to come out with an alternative policy for the country, which you haven't. You need to touch the hearts of the people, the pulse of the people. Understand that and work towards it. That's right. If you don't, और अगर जो जैसे निजाम साहब बोल रहे थे, ठीक है, इज अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ अस, सीधी सादी बात है, राहुल गांधी जी ने बाहर आकर के ये कहा कि वी आस्क्ड फॉर अ सीज फायर, कि हम लोगों ने युद्ध विराम की बात करी, हम लोगों ने पाकिस्तान को बोला कि भाई युद्ध विराम कर लो। कितने दिन Which is absolutely untrue. कैंपेन ये चल रहा था, कितने राइफल गिरे पता ही, come clean on अभी भी चल रहा है। Yes. अभी भी वही बात कर रहे हैं। Even when the air chief marshal has said that we have downed so many of theirs, now if you still keep, And they have said very clearly, not one single Rafale has come down in a conflict situation. Conflict में एक भी Rafale नहीं गिरा है। That's it. Now you don't want to believe it, up to you. You want to believe Pakistan, up to you. And the Pakistanis are showing an old video game from their official handle. ADGPR का जो उनका ऑफिशियल हैंडल है, वहां पर एक वीडियो गेम दिखा रहे हैं वो लोग। मतलब आपको वीडियो गेम जो है वो ठीक है, वो चलता है। भारत सरकार जो है, यानी भारत की फौज जो है, आपको सैटेलाइट पिक्चर्स दिखा रही है बिफोर एंड आफ्टर, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स दिखा रही है बिफोर एंड आफ्टर, वो आपको रास नहीं आ रहा। आप क्या कर रहे हैं आप लोग, गॉड ओनली नोस। एनीवे, दैट्स इट, दैट्स ऑल वी हैव गॉट फॉर यू इन टुनाइट शो। आज के शो में सिर्फ इतना ही, और वो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है। नेशन नाउ को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। the fastest growing channel of the nation, Nation Now. Nation Now, fastest growing channel of the nation. That's it now. And do send in your comments. And by the way, let me repeat, I wanted to discuss something else. I think I'll discuss it tomorrow. I'll talk about how Trump's son-in-law is actually a partner with Umeed Malik. Umeed Malik is the guy who owns something called 1789 Capital. 1789 Capital, Trump's son-in-law, and World Capital Liberty or something like that, Worldwide Capital Liberty, that World Financial Liberty, yeah, that is the cryptocurrency owned by the Trump family, and they have got Pakistan as the hub for all these activities. This Umeed Malik is actually a man of Pakistani origin, who used to be earlier with the Democratic Party, now has joined the Trump family and is directing all of Trump's operations. And hell of a lot of Pakistanis are, how shall I put it, shareholders. I can only say that in Mr. Trump's business ambitions after he retires as president. And there is one estimate which says that Mr. Trump's wealth, personal wealth, would have increased by at least 20 times by the time he retires as president. That's And it. he'll transfer Pakistan into a tax haven and military protection And to he will- save his money. and he will own Pakistan. Cryptocurrency, illegal tender, and all this money is safe. And in Pakistan will be owned by the Trump family. Yes. That's what's going to happen. That's the future of Pakistan. I'm sure they would love it. I am reasonably certain that no Pakistani will object to that. पाकिस्तान का शुरू से यह है कि हमारा कोई जमींदार होना चाहिए और हम उसके बंधुआ मजदूर होने चाहिए। That's it. पाकिस्तानियों को आदत पड़ गई है भिखारी बन के हर जगह पे कटोरा लेकर के भीख मांगने की। तो they'll be very excited in fact कि ट्रम्प साहब ने देखो हमारे क्या है आसिम मुनीर को एम्प्लॉयमेंट दे दी है, उनको नौकरी दे दी है, यानी हमारी फौज जो है अब ट्रम्प साहब के लिए काम कर रही है। The Pakistanis are very excited about it. Let me tell you this. They're not an independent country. They're not even a country. जिस दिन पाकिस्तान एक बोनाफाइड देश बन जाएगा, उस दिन हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में दोस्ती हो जाएगी। उसके पहले ऐसा कभी नहीं होने वाला। पाकिस्तान को आदत पड़ गई है किसी की नौकरी करने की। नौकर लोग हैं, हमेशा ही नौकरी करेंगे, नौकरी नहीं करेंगे, भिखारी बन के रहेंगे। अरे यार, हज पे जाते हो, वहां रास्ते में प्लेन में आप लोग भीख मांगते हो। ये है पाकिस्तान का कैरेक्टर। So what are we talking about? In any event,
That's just about it as far as tonight's show is concerned. Please do send me your comments. I would love to read them. Pradeep ji and I would love to read them out, and it is because of your support that we have grown so much and we are still growing. And please do keep supporting us. That's it. That's all we've got for you in tonight's show. From all of us here at Nation Now, एक बार फिर आपको जन्माष्टमी की बहुत 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 शुभकामनाएं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और that's it. आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय, जय हिंद। जय